I want to share my screen. तो ओहो, क्या पंगा है इसका। तो मेरे पास ना कुछ लिंक्स हैं, तो ये लिंक्स आई एम शेयरिंग। ये दिख रहा है सबको? यूट्यूब ये दिख रहा है क्या सबको? हाँ दिख रहा है। New atheism. They're a bunch of sheep because of this. The book that they follow, the God delusion, the central argument that they follow in that Bible is a 6-step process, and that's called the central शायद ये थोड़ा argument. लैग कर And रहा है। that's I want you all to listen to New this. atheism. They're a bunch of sheep because of this. The book that they follow, the God delusion, the central argument that they follow in that Bible is a 6-step process, and that's called the central argument. And that central argument, it basically is this. Darwinism gives an explanation of biodiversity, so we don't need a designer to explain that. Therefore, the conclusion that Richard Dawkins, their prophet, makes is God almost certainly doesn't exist. Now, Charles Darwin himself would have disagreed with that conclusion. This is why neo-atheism is based on a falsehood. Darwin was never an atheist. He was a deist. He believed there was a God, not a personal God, not Christianity or Islam or anything like that. The last decade of his life, because of the problem of evil, he became an agnostic. But he still said, my beliefs about God fluctuate. Sometimes he's a deist, sometimes he's an agnostic. So this whole movement online that you see, all these videos that you see, all these people that you say, oh, evolution's true, therefore there's no God, or Darwin got it right. Even the founder doesn't agree with that. New atheism. They're a bunch of sheep because of this. The book Okay, that they so this follow, was one the video. God delusion, the And then I will share another video. Just keep listening to this. कुछ नहीं करना है, इसको बस सुनिए ध्यान से। You just said that people believed in God because of God of the gaps. And because of God of the gaps, as science is progressing, religion is regressing. Is that in line with what is actually going on in the world? Seems to be. Why Okay. would you say not? Okay, here's why I would say no. According to Pew, by the year 2070, Islam is going to be the largest religion on earth. Christianity is also going to increase. And guess what? Your group, the atheists and agnostics, are actually going to shrink by 3%. So if science is progressing, which I'm assuming which is what is happening today, then why is that happening? And I'll tell you why it's happening. Is because the arguments that you're putting forth don't actually make sense, such as people believe in God because of God of the gaps. Science explains how things work. God is an explanation of why things exist. So it's a category mistake, which atheists have been doing for a very long time, and the whole God delusion book is about that category mistake. And even other evolutionary thinkers like Michael Roos, he says, I find this embarrassing. And he's an atheist. He says, I find the God delusion embarrassing. You just said that people believe This in was God because second of video. I'll show you one more video. This है तो मेरे पास काफी सारी collection में, but I'll just show one more. To say to someone when talking about human rights that human rights don't tangibly exist, that's not a problem for them. They're not going to mind that because that's not what they think human rights are anyway. Whereas with religion, I think that if you say, well, look, God is beneficial to you, but doesn't actually exist, I think that's going to be more troublesome to the religious believer. I'm not making an argument for God. I was just showing. I know you're not, yeah. Yeah, I was just showing if this premise is, this is what we're going to discuss now. So I could cite studies where there is this benefit. Recently, Pew. Yeah. नहीं दिख रहा है? नहीं अभी शायद आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया। Okay, sorry. Okay, ये था. Sorry. The Quran is revealed in the Arabic language, and Arabic
to say to someone when talking about human rights that human rights don't tangibly exist, that's not a problem for them. They're not going to mind that because that's not what they think human rights are anyway. Whereas with religion, I think that if you say, well, look, God is beneficial to you, but doesn't actually exist, I think that's going to be more troublesome to the religious believer. I'm not making an argument for God. I was just showing. I was just showing if this premise is, this is what we're going to discuss now. So I could cite studies where there is this benefit. Recently Pew put out this research that belief in God makes you happier and so on and so forth. So if that is granted, then that conclusion is valid. What conclusion? The conclusion that we'd have to pretend as if God exists. These are two different types of thing, right? Religion, the existence of God, are metaphysical truth claims. Yes. Human rights are a moral tool. What I'm doing here is I'm only changing the variables in your argument. And but you're changing them in such a way that can't be done, right? Like you can't just swap in something that isn't of the same category. Why not? Okay. So ये कुछ छोटे-छोटे YouTube shorts थे. My question is, किसी को इसमें कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया इसमें? क्या चल रहा था? Actually इसमें कुछ समझना नहीं था, because ये थोड़ा theological questions थे जो ये पूछ रहा था. But इसमें ये देखना था कि how well versed they are in the field of philosophy, comparative religions and theology, कि they were able to counter and they were able to present solid arguments. Of course ये मुस्लिम है तो हम core इनकी philosophy से agree नहीं करते, but इसमें जो interesting चीज़ सीखने वाली ये थी कि they were there to fight and they were there to present their core philosophy, and they could present their core philosophy with all the might. Now I'll show you one more thing. अब इसका counter दिखाता हूँ. So there is this Vaishnava, very highly regarded Vaishnava, जो वल्लभ संप्रदाय है, one of the four रुद्र संप्रदाय का offshoot है, शाखा भेद है. तो उसमें तो वल्लभ संप्रदाय के अलग अलग schools हैं, मतलब अलग अलग जो हैं वो घर हैं, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग शाखाएं हैं, है ना. तो CC में आता है, there are different branches of the Chaitanya tree. तो उसी में जो वल्लभाचार्य के जो आगे जब वल्लभ संप्रदाय फैला तो उसमें से एक जो स्कूल है या एक जो सेक्शन है वो ये है, और उसके ये आचार्य हैं. एंड आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू हिज इंस्टाग्राम पेज एंड आई सॉ सम वेरी वियर्ड थिंग्स. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज अ वैष्णव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. उनकी फिलोसॉफिकल और प्योरिटी को लेकर कोई भी डाउट नहीं है. बट एक बड़ी अजीब चीज़ दिखी मुझे उनके इंस्टाग्राम पेज पे. I'll just show. तो इनका नाम है गोस्वामी श्री आश्रय कुमार जी. With all due respect to him, he's a very well practicing Vaishnava. But then you scroll through his Instagram page. There is nothing more. There is nothing more costly in this world than experience, for it is found by losing much in life. There is nothing more costly in this world than experience, for it is found by losing much in life. अब मुझे आप में से कोई बताए कि इसका क्या स्पिरिचुअल मतलब है इस स्टेटमेंट का? तो बता सकते हैं? There is nothing more costly in this world than experience, for it is found by losing much in life. एक्सपीरियंस जो है वो मतलब जैसे मतलब अमोघ लीला प्रभु भी कहते हैं कि महंगा टीचर है एक्सपीरियंस एक. और अगर किसी को स्पिरिचुअल, मेरे भैया इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है इस कोट का? बता रहा हूँ. इंग्लिश मतलब नहीं समझ रहा, मैं पूछ रहा इसका. नहीं, मैं इंग्लिश मतलब नहीं बता रहा. ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस एक महंगा टीचर है. जैसे मतलब अमोघ लीला प्रभु बता देंगे कि हमें सुन के सीखना चाहिए. अगर हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा. तो सुन के सीखना चाहिए. एक्सपीरियंस क्योंकि एक महंगा टीचर है, वो काफी कुछ. ओके ठीक है. फिर इसका मतलब क्या है? Even though a lie can make one's life difficult, one should always rely on truth to prove that one is truthful in all circumstances. और आगे बढ़ते हैं. It's not possible, no Prabhuji, to be truthful in the all circumstances. अरे आप लोग मेरा पॉइंट को नहीं समझ रहे. मैं ये नहीं पूछ रहा कि इनका स्टेटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है.
इनका स्टेटमेंट वैलिड है, ऑल रिस्पेक्ट, बट मैं जानना चाह रहा हूँ कि इफ एन आचार्य इज स्पीकिंग, इफ अ prominent person in a prominent Vaishnav संप्रदाय is speaking, what is he speaking? Substance क्या है उसका? That is my question. आप लोग शायद उसमें चले गए कि इसका इंग्लिश मतलब क्या है या इसका ये मतलब क्या है, मतलब क्या है. My question is कि what is the spiritual significance of these quotes? Some beautiful paths can't be discovered without getting lost. Surrendering probably, like without ये तो surrender we अब won't. तो you can connect anything with anything, but he's a servant मतलब of इसका Krishna. मतलब without surrender we can't get that experience which But we is that obvious? ये कोट पढ़ के obvious हो रहा है? नहीं, अगर कोई स्पिरिचुअलिस्ट है बाहर तो के मतलब लोग तो उसको नहीं पता समझा सकते हैं। पता पता चलेगा किसी को, अगर कोई Where स्पिरिचुअलिस्ट where नहीं is है. Krishna? Where is Krishna? इसका कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है अपने कुछ हमें भी भी नहीं निकाल पता मैं लगेगा। इसका कर्मी इंटरप्रिटेशन भी निकाल सकता हूँ. हाँ, हाँ Don't be afraid of going slow, be afraid of. ये इनका कोट है भी नहीं, ये तो बहुत फेमस कोट है, लेकिन उन्होंने नीचे अपना नाम लिख दिया है. इन्होंने नहीं, जो इनकी टीम होगी. एक और चीज मैं पढ़ रहा था, ये सब जितने भी कोट्स हैं ये सब बहुत फेमस कोट्स हैं. ये सब तो जो मतलब लाइफ, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं. हाँ मोटिवेशनल स्पीकर, Like इस्कॉन money, वाले भी तो status, देते हैं प्रभु जी power. ऐसे ही. Money, status, power doesn't make you a good person, but feeling pain for others make you a true person. Where is सिद्धांत? आपको क्या सकता है, हाँ वैष्णव तो पर दुख दुखी होता है, तो वैष्णव होगा तो वो दूसरों का दुख एक्सपीरियंस करेगा. Yes, we can interpret it in that manner, but that's not what we expect from a spiritual leader. बट गौर गोपाल प्रभु के भी तो ऐसे ही होते हाँ हैं। उनका भी तो वही है लाइफ कोच, वो भी तो वैसा ही देते हैं, उनका भी कहीं कृष्णा है नहीं. So my question is कि not targeting any person or something. My question is कि मेरे को ये चीज़ काफ़ी स्ट्राइकिंग लगी कि these people, these Muslims, उनका पूरा मलिच्छ सिद्धांत है, but they are so straightforward, clear, precise and accurate in their presentation. Well, being a spiritual leader in authentic sampradaya, all we have on our Instagram pages is quotes. Live in the present. Live in the present is a Mayavadi concept. We don't have to live in the present. Live in the present बहुत वेग कंसेप्ट है, एक्चुअली बहुत वेग कंसेप्ट है. मायावादीज यूज करते हैं इस टर्म को, लिव इन द प्रेजेंट. फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं, पास्ट के क्या करोगे, बस अभी जियो, यही जीवन का मतलब, अभी जियो. मोटिवेशनल स्पीकर्स यूज करते हैं लिव इन द प्रेजेंट, एंड देन वो ऐसे वाला पोज है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स यूज करते हैं. दिस इज वेरी disheartening to see a spiritual leader posing like this. और ये एक पर्सनालिटी नहीं, एक पूरी वेव आ गई है, वेव है जिसमें everyone is flowing in this direction. Even the so-called spiritualists, not just spiritual leaders, they are moving in this direction. But then मेरा क्वेश्चन ये है, अगर जिसका मैंने YouTube शॉर्ट्स दिखाया उसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए, कहा जाए यू डिबेट, विल यू बी एबल टू डिबेट? अगर आपने पूरी जिंदगी ये पढ़ा है, लिव इन द प्रेजेंट, ब्यूटीफुल पाथ्स कैन नॉट बी डिस्कवर्ड विदाउट गेटिंग लॉस्ट, हाउ विल बी एबल टू फाइट विद देम? कैसे लड़ पाएंगे? 2070 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा. 2.76 बिलियन मुस्लिम्स. मैं प्यू रिसर्च सेंटर का पढ़ रहा था अभी, जो अमेरिकन रिसर्च एजेंसी है, and they will be around 30% of world's population, will be around 16% of world population. आप कैसे अपने एजेंडा को सामने रखोगे? That's a very big question. If we put content like this, live in the present, it's a Mayavadi concept. Actually, Mayavadis use this quote, live in the present. Vaishnavas, they don't use this quote. कहीं भी आप प्रोपाद बुक में निकाल के दिखा दो, किसी भी प्रोपाद बुक में निकाल के दिखा दो, प्रोपाद जी ने लिखा हुआ है डिवोटी शुड लिव इन द प्रेजेंट, ही शुड ओनली केयर अबाउट द प्रेजेंट, नॉट पास्ट एंड फ्यूचर. डिवोटी इज ऑलवेज एंशियस हाउ टू सर्व कृष्णा. अ डिवोटी इज ऑलवेज एंशियस दैट आई एम इन दिस मटेरियल, आई हैव टू गो बैक टू द डेड. अ डिवोटी इज ऑलवेज एंशियस डेथ कैन कम एनी टाइम. क्यों मान लो परीक्षित महाराज
आते शुद्धदेव गोस्वामी के पास और शुद्धदेव गोस्वामी से कहते कि मैं अभी मरने वाला हूँ 7 दिन में। शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं यार डू डोंट वरी, लिव इन द प्रेजेंट। अभी 7 दिन है ना, 7 दिन यू लिव इन द प्रेजेंट। फ्यूचर को लेकर आप अभी एंजाइटी क्यों डाल रहे हो? बट शुद्धदेव गोस्वामी ने नहीं कहा, इसे कहा कि तुम्हारी एंजाइटी बिल्कुल जेन्युइन है, एंड देन नाउ यू शुड लिसन टू श्रीमद् भागवतम। So the reason of sharing this is not to raise questions on any Vaishnava. He is actually an authentic Sampradaya, Pramanik Vaishnava, and all glorious to his services to Supreme Lord. But the point is, कि if we don't start to learn to fight now, we will never be able to fight. ये बहुत important चीज़ है जिसको लेकर हम कहीं ना कहीं कई बार ध्यान नहीं देते. Okay, so with that in mind, what is the purpose of learning Siddhanta? We have to listen everything. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन. I'll just share my screen. तो आज लास्ट टाइम पे we discussed Judaism, और जुडाइज्म जहाँ पर ख़त्म होती है, मोसेस की डेथ हो जाती है, ज्यूज़ जो हैं वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पिट रहे हैं, और फिर धीरे धीरे एक टाइम आता है, एक इवेंट आता है जिसमें जुडाइज्म में ही एक प्रॉफिट का जन्म होता है, हुज नेम इज़ जीसस. जीसस का जन्म होता है वर्जिन मैरी से, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था ऑलरेडी. एंड आज के सेशन में हम 3 बेसिक मेजर कैटेगरीज में बात करेंगे. ऑरिजिन of Christianity and similarities and difference between their beliefs and any interactions with Gaudiya Vaishnavas. इसमें साथ ही साथ we will also discuss about भविष्य पुराण में जीसस की जो वो है भविष्यवाणी है, and Srila Prabhupada जो कह रहे थे कि Jesus Christ came to Jagannathpuri, that we will also discuss, and what was Srila Prabhupada's comment on that. So Christianity was founded on this future hope of Messiah coming. Actually क्या हुआ था कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ, ये आएगा पॉइंट आगे, चलो आगे आएगा तभी डिस्कस करेंगे. तो मसाया विल कम एंड डिलीवर द ज्यूज फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कल्चर ऑपरेशन. व्हेन जीसस केम ही वाज क्रूसिफाइड एंड डिपार्टेड and there was no substantial transformation in the political situation of the followers. They were still persecuted. From there emerged the hope of second coming of Jesus. Jesus came and gave this message, and he will come again, and at that time he will reward those who live according to the message. So actually क्या हुआ जब जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ, so at that time जितने भी जीसस के फॉलोअर्स थे, एक्चुअली जीसस का क्रूसिफिकेशन वाज डन बाय ज्यूज. हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था. इसलिए जब हिटलर वाज परसिक्यूटिंग ज्यूज तो कैथलिक चर्च ने सपोर्ट किया था. और वो क्यों हुआ था? बिकॉज जब जीसस आए एंड जीसस 29 की एज में जीसस अराउंड 33 साल तक रहे इस पूरी पृथ्वी पर. 33 साल में 12 साल से लेकर और 27 साल तक जीसस ने क्या किया, इसका किसी के पास कोई सॉलिड रिकॉर्ड नहीं है. अलग अलग चर्चेस अलग अलग स्टोरीज बताते हैं, ये किया जीसस ने, वो किया. अलग अलग अपोस्टल्स अलग अलग गॉस्पल्स में अलग अलग कहानियाँ बताते हैं. बट एट द एज ऑफ 27 व्हेन जीसस स्टार्टेड प्रीचिंग, तो जो जूइश साइनागॉग्स होते हैं, साइनागॉग मतलब जैसे चर्च होता है, मंदिर होता है, वैसे जूइश जो टेम्पल्स होते हैं साइनागॉग्स कहते हैं. और जूइश रिचुअल्स में जितने भी वो थे, सुपरस्टिशंस थे, जीसस क्राइस्ट ने उस सब के अगेंस्ट बोलना शुरू किया. और जीसस क्राइस्ट ने जब जूइश प्रॉब्लम्स के बारे में बोलना शुरू किया, देन ये ज्यूज़ को पसंद नहीं आया, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ थे, एंड दिस रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट. तो उन्होंने सोचा कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं. अगर हम जुडाइज्म से जीसस क्राइस्ट को बाहर निकाल दें तो ज़्यादा से ज़्यादा जीसस क्राइस्ट को हम धर्म निकाला दे सकते, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते. तो ज्यूज़ ने क्या किया, जो रोमन किंग था जो उस समय वहाँ पर राज कर रहा था, बिकॉज ये सब रोमन एम्पायर के अंडर था, देन दे वेंट एंड कंप्लेन टू रोमन एम्पायर कि जीसस एक्चुअली अपनी एक पार्टी बनाकर राजा आपके प्रति म्यूटिनी, विद्रोह करने का एक प्लान कर रहे हैं, इसलिए आप जीसस को मार दो. एंड जब रोमन किंग को ये पता चला, देन ही ऑर्डर टू क्रूसीफाई जीसस. दिस इज व्हाट हैपेंड. लेकिन जो क्रिश्चियंस थे उन्हें लग रहा, तो उसके बाद फिर जब ये क्रूसिफिकेशन हुआ, उसके 7 हफ्तों बाद जीसस रिजरेक्टेड मतलब जीसस को एक गुफा में रखा गया, और जीसस के जितने भी उनके फॉलोअर्स थे सब डिप्रेशन में चले गए कि अब तो जीसस चले गए, हमारे पास कोई सॉलिड फिलोसफी नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो अभी हम क्रिश्चियनिटी को कैसे प्रोपेगेट करेंगे.
and at that time Jesus rose from the dead. और जिनके जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उन्हें ऐसा लगा कि शायद गॉड डिसेंड किया, भगवान, वो दे कुड एक्सपीरियंस गॉड एंड जीसस केम आउट फ्रॉम डेड and a lot of things happened there, but a lot of things happened there. So where was I? तो या जीसस resurrected, और उन्हें उसके बाद क्रिश्चियंस ने फिलॉसफी बनाई, that actually Jesus died for our sins and now we have to die for his cause. Then came this idea. ये Jesus died for our sins was not always the idea. It was after Jesus resurrected, जब वो वापस जीसस जिंदा हुए and he started walking. वो माउंटेन अभी भी है इजराइल में, जेरूसलम में. Then when he started walking, then they thought कि okay, Jesus died for our sins and now we have to die for his cause. लेकिन जीसस के आने से सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हुआ. जीसस के आने से everything didn't went perfect. Then they said कि जीसस दोबारा आएंगे. And जब दोबारा आएंगे, that will be day of judgment. And when Jesus will come again, he will check everyone. If everyone has abide by his rules and regulations, जो Jesus ने 10 commandments दी हैं और भी rules regulations दिए हैं. इसलिए हमें क्या करना है, day of judgment तक rules regulations को follow करना है. Day of judgment में Jesus will come and he will establish kingdom of God on earth and we will live happily ever after. और जो Jesus को follow नहीं करेंगे, they will go to hell. So, तो मैंने जो कहानी बताई है, that was Jesus' life, born and brought up as a Jew, और 12 से लेकर 29 साल, कहीं 27 साल, it was differently written, तो उनके बारे में कुछ नहीं पता है, and every church has got their different stories. Now, शिला प्रभुपाद के साथ जो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी का कनेक्शन था, ये बड़ा यूनिक कनेक्शन था, कि जैसे शिला प्रभुपाद के जो पहले फॉलोअर्स थे पूरे वेस्ट में, वो या तो क्रिश्चियंस थे या ज्यूज थे. एंड शिला, और वो सब मेजरली मंदिर चर्च वगैरह नहीं जाते थे, बहुत विरला ही कोई होगा उनमें से जो चर्च जाता होगा. इसलिए बिकॉज क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी को किसी भी लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, इसलिए शिला प्रभुपाद टोल्ड देम टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस. बट जब भी शिला प्रभुपाद के पास कोई ऐसा व्यक्ति मिलने आया जो क्रिश्चियनिटी को सॉलिडली फॉलो कर रहा है, देन शिला प्रभुपाद टोल्ड हिम कि यू फॉलो योर फेथ फर्स्ट, यू फॉलो योर रिलीजन फर्स्ट. शिला प्रभुपाद का जीसस क्राइस्ट के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी कहानी है. इसको हम आगे पढ़ेंगे. जीसस क्राइस्ट जो है, शिला प्रभुपाद क्रिश्चियनिटी में लॉजिकल फैलेसीज को रेज करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या क्या लॉजिकल फैलेसीज हैं, क्रिश्चियनिटी कहाँ कहाँ गलत है. लेकिन साइमल्टेनियसली शिला प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट को एज एन गुरु भी कहते हैं. जीसस क्राइस्ट इज आवर गुरु, ही डाइड फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड. और जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स को कहते हैं दे वर गुड प्योर डिवोटीज. एट द सेम टाइम जीसस क्राइस्ट ये भी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट की शिला प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स वर चेंज्ड, वर मैनिपुलेटेड ओवर द इयर्स. एंड फिर शिला प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि इफ यू आर अ क्रिश्चियन देन यू शुड फॉलो बाइबल डायरेक्टली, टोटो यू शुड फॉलो बाइबल. तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद का जो स्टैंड है इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन या शिला प्रभुपाद ने दोनों तरह के ओपिनियंस दिखाए. मेरा पॉइंट ये है मेजरली कहने का. फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आती है कि जीसस क्राइस्ट इंडिया आए थे, और कहा जाता है कि जो 12 से 29 साल का बीच का फेज था, इसमें जीसस क्राइस्ट ट्रैवल्ड, और इसमें जीसस क्राइस्ट जो है वो जगन्नाथ कश्मीर आए थे एंड ही ऑल्सो केम टू जगन्नाथपुरी. और इसका डिस्क्रिप्शन भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व है, भविष्य पुराण का एक सेक्शन है प्रतिसर्ग पर्व, उसमें आता है. लेकिन ये जो प्रतिसर्ग पर्व है भविष्य पुराण का, इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्शन, और इसमें स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारे इंटरपोलेशंस हुए हैं. इस प्रतिसर्ग पर्व में जीसस क्राइस्ट का डिस्क्रिप्शन है, क्वीन विक्टोरिया का डिस्क्रिप्शन है. चलो जीसस क्राइस्ट तो एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थी, तो उसका क्वीन विक्टोरिया का डिस्क्रिप्शन क्यों है? और भी बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज इस प्रतिसर्ग पर्व में मिलती हैं हमें भविष्य पुराण के. साथ ही साथ एक एक्वेरियन गॉस्पल है जिसमें जगन्नाथपुरी में आने के बारे में बताया गया है. और ये एक्वेरियन गॉस्पल भी कोई, अगर आप क्रिश्चियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जाओ तो ये कोई स्क्रिप्चर नहीं है, वैलिड स्क्रिप्चर नहीं है जिसको एज अथॉरिटी एक्सेप्ट किया जाता है. तो पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं. तो शिला प्रभुपाद इज वन ऑफ द रथ यात्रा लेक्चर, द सेकंड रथ यात्रा दैट वाज देयर. ही सेड योर जीसस, एक्चुअली एक डिवोटी का कोट था ये ऑन इंटरनेट, मैंने पूरा कोट ही पिक करके यहाँ डाल दिया. तो ही सेड योर जीसस ही इज ऑल्सो वर्शिपर ऑफ जगन्नाथ, ही केम टू इंडिया एंड ही वेंट टू जगन्नाथपुरी. There was a book that Srila Prabhupada read called the Aquarian Gospel.
Based on that, Srila Prabhupada was quoting that. Ravindra Swarup, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, was one of the Srila Prabhupada disciples. So he asked Srila Prabhupada the name of gospel. But many people appropriate the religious sounding name for their own purposes. For example, in India, some Brahmins got converted into Christianity and they have written a book called Christ Upanishad. So what happens is use a religious sounding term and a book that is not in the canon of religious books. So the Aquarian Gospel is a most recent book, few hundred years ago. This is not really considered as a scripture. So Ravindra Swarup asked Srila Prabhupada, Prabhupada, is this Aquarian Gospel good? Is this a bona fide book? Srila Prabhupada said, what is the problem? And then he again asked, is the Aquarian Gospel bona fide book? Prabhupada smiled and said, part of Jesus coming to Jagannath Puri is good. The point is we have the principle of Anukulasya Sankalpam Pratikulasya Varjanam. So like इंडिया में भी क्राइस्ट उपनिषद और अल्होपनिषद अकबर के टाइम पे लिखा गया है, तो ब्राह्मण्स नाम लिखते हैं. तो इसी तरीके से ये डाउटफुल है कि जो एक्वेरियन गॉस्पल है ये कोई बाद की इन्वेंशन है, किसी ने बाद में लिखा है. और इसीलिए अगर आप क्रिश्चियंस को एक्वेरियन गॉस्पल एज प्रेजेंट करेंगे कि देखिए आपके एक्वेरियन गॉस्पल में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट जगन्नाथपुरी आए थे, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिलीजियस कैनन. कैनन मतलब जो रिलीजियस पूरा सेट है, जैसे हमारे में वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक संहिता, ये सब पूरा वैदिक कैनन है. इस तरीके से जो बिब्लिकल कैनन है, उस बिब्लिकल कैनन के अंदर एक्वेरियन गॉस्पल नहीं आता, इसलिए दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट अथॉरिटी. But because Srila Prabhupada say that he has come to Jagannath Puri, so we as followers of Srila Prabhupada, we accept this fact that Jesus Christ has come to Jagannath Puri, although we will not say this to Christians. We will not say this to Christians. Okay. Further, Bhavishya Puran. In the Bhavishya Puran, there is Pratisarga Parva, where the prediction of Jesus is given. Pratisarga Parva is considered by scholars to be highly interpolated. In the same Pratisarga Parv, there is a reference, is not just to Jesus, but there are so many political personalities also mentioned. Even Queen Victoria is also mentioned over there. Queen Victoria is not really any spiritual personality. So the authenticity of that is somehow dubious, and Srila Prabhupada said that everything in there is perfect, but Srila Prabhupada never quoted himself. भविष्य पुराण को प्रभुपाद जी ने कभी भी एज अथॉरिटी कोट, इनफैक्ट भक्तिदान महाराज और भक्तिविनोद ठाकुर ने भी कभी कोट नहीं किया. ऑल्दो भक्तिविनोद ठाकुर बिफोर कमिंग टू गौड़िया वैष्णविज्म, he was deeply into Christianity. He was deeply studying Christianity. But he never quoted Bhavishya Puran. Bhaktisad Maharaj never quoted. Srila Prabhupada also never quoted. Although he said, Srila Prabhupada said that Bhavishya Puran is perfect. But आगे देखिए क्या कहते हैं. It is quite likely that Srila Prabhupada could have referred to the Bhavishya Puran in its original state of being perfect. But the interpolations may or may not be perfect. So we don't deny that and we don't highlight that. Historically speaking, what Bhavishya Puran talks about, Maharaj Shalivan went to North India towards the Himalayas. तो एक शालीवाहन राजा के बारे में भविष्य पुराण बात करता है जो कश्मीर की तरफ गए, और वो एक beard, tall, fair looking, and that person said, I am considered as prophet by Melts, and I have taught them the religion of worship of the fire and the sun, and I have born of a virgin, and his name is Isa Masih. That comes there. तो ये चार चीज़ें भविष्य पुराण ने कोट की है. पहला कि आई एम कंसिडर्ड द प्रॉफिट बाय मेल्स, तो जीसस क्राइस्ट जिस जगह पर थे उस जगह का नाम था मेल्स, तो दैट वाज करेक्ट. दूसरा उन्होंने कहा कि आई हैव टॉट देम द रिलीजन ऑफ वर्शिप ऑफ द फायर एंड द सन. दैट इज रॉन्ग बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट आइडल्ट्री, ही वॉज अगेंस्ट वन पर्सन, तो इसलिए रिलीजन ऑफ द वर्शिप ऑफ फायर एंड सन गलत है. I have born of a virgin सही है, and his name is ईसा मसीह सही है, लेकिन ईसा मसीह भी नाम नहीं था, जीसस क्राइस्ट नाम था, लेकिन ईसा मसीह उसका वैदिक वर्जन. तो सारी चीज़ें जो भविष्य पुराण में लिखी हुई है वो भी सही नहीं है, सारी चीज़ें वो भी हमें भी सही नहीं है. इफ़ यू लुक एट द 4 points, 2 are fine and 2 are गलत. But Jesus, as far as we know, never taught of worship of sun and fire. And also, if you look at historical record, whether Shalivan existed at the time when Jesus came to India, that is also not very clear. Therefore, even within the Vedic scriptures, we focus on quoting that which our acharyas have quoted. Otherwise, we don't quote. Am I making sense here? Any questions, anyone? Prabhuji, what was the first point? First point was that he is the king of Melts. तो वो actually वो जगह थी जहाँ पे Jesus Christ was ruling. Melts? Yeah, यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है.
I am considered as a prophet by Mills. Okay, okay. तो being the teacher for the, मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी का नाम होगा, ऑल्दो मैंने इस पे रिसर्च नहीं किया तो मैं बहुत अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकता इस पे, बट या तो ये जगह होगी या ये कम्युनिटी होगी, समथिंग लाइक दैट. सो हैविंग अंडरस्टूड दीज बेसिक पॉइंट्स, लेट्स सी कि जीसस क्राइस्ट का प्रीचिंग कैसे स्टार्ट होता है. तो ही प्रीच्ड अगेंस्ट ज्यूज ने कंप्लेंट कर दिया और उन्हें क्रूसीफाई कर दिया, जीसस क्राइस्ट को मार दिया गया. फिर जीसस की जो लाइफ है उसके बारे में 4 गॉस्पल्स हैं. गॉस्पल्स मतलब स्पिरिचुअल बुक्स, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ मार्क, गॉस्पल ऑफ ल्यूक एंड गॉस्पल ऑफ जॉन. और वो उन सब में जीसस के एक्टिविटीज़ के बारे में, उनकी लीलाएं, जीसस की अगर हम कहें तो लीलामृत, श्री जीसस लीलामृत है ये 4 बुक्स. और इन सब में भी आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, and even contradictions in their account of Jesus' life. Beyond that, there are acts of Jesus, means how the 12 apostles were there and how they went to different places and preached is also given. So actually क्या हुआ, Jesus Christ के crucifixion के बाद there were 12 major disciples of Jesus Christ, and they went to different parts of the world and they started, क्योंकि अभी उन्हें पता चल गया कि Jesus died for our sins, now we have to die for Jesus's cause. So now they went to different parts of the world and they started preaching there. One of them came to South India also. 2000 years ago he came to South India and he was heavily tortured. मुझे नाम नहीं पता उनका, लेकिन this I know कि he came to South India and he was heavily tortured. Maybe he came to Puducherry or somewhere. इस तरीके से. So last book Revelation is about the future. तो इसमें एक्चुअली जो ये गॉस्पल्स हैं, 4 गॉस्पल्स हैं, मैथ्यू, ल्यूक, मार्क, ल्यूक और जॉन, इसमें जीसस की भी एक्टिविटीज का डिस्क्रिप्शन है एंड दैट ऑफ द 12 अपोस्टल्स, दोज़ हू वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस. एंड लास्ट बुक में वर्णन है किस तरीके से जब डे ऑफ जजमेंट आएगा उस टाइम पे गॉड विल कम, ही विल किल सेटन एंड एस्टैब्लिश किंगडम ऑफ गॉड. इस तरीके से दे हैव डिफरेंट फिलॉसफीज, तो उसके बारे में उसमें हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है. तो एक जो बहुत फेमस कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, दैट इज दिस कंसेप्ट ऑफ डूम्सडे, या डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, या डी डे कहते हैं. इसका मतलब है ये वो दिन है जब दुनिया सब खत्म हो जाएगी, डे ऑफ जजमेंट है, हम सभी भगवान के सामने जाएंगे और भगवान कहेंगे तुमने कैसे जीवन बाइबल के हिसाब से जिया, बाइबल के अगेंस्ट जिया. नहीं, मैंने बाइबल के अगेंस्ट जिया, नरक में चले जाओ हमेशा के लिए. मैंने बाइबल के हिसाब से जिया, ठीक है, तुम हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाओ. दिस इज कॉल्ड डूम्सडे. और ये डूम्सडे का कंसेप्ट है कि लोगों के अंदर ना डर लेकर आओ. तो भगवान गीता में कहते हैं देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड: फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव. और जो लोएस्ट स्टेज है लव का, रिलेशनशिप ऑफ गॉड का, वो है फियर. डर के कारण भगवान के साथ हम संबंध बनाते हैं, दैट इज द लोएस्ट स्टेज. और यहाँ पे एक्चुअली जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो सभी उसी डर के बेसिस पे काम कर रहे हैं कि अगर तुमने हमारी किताब के हिसाब से नहीं चले तो तुम्हें आजीवन, तुम्हें इन्फिनिटी तक नरकों में सड़ना पड़ेगा. और ये एक फंडामेंटल डिवाइड है हमारा और अब्राहमिक रिलीजन्स का. एंड इन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट. किस तरीके से दिस डिनाइज द कंसेप्ट ऑफ अ मर्सीफुल गॉड, दिस इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ अ मर्सीफुल गॉड. गरुड़ पुराण में भी तो मतलब डर से ही ला रहे हैं. पर गरुड़ पुराण सच बता रहा है. ऐसे तो अगर आप 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम देखें तो नरकों का वर्णन है और बहुत भयानक वर्णन है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 5th कैंटो. लेकिन अगर आप उन्हीं चैप्टर्स पे प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं ना, प्रभुपाद जी इतना नरकों का वर्णन नहीं कर रहे थे, नहीं तुम सड़ोगे मरोगे. प्रभुपाद जी सेइंग कि यू ब्रिंग आउट दैट मूड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट लव फॉर गॉड. अब डर की वजह से आप फियर के लेवल पे मत रहो, आप लव के लेवल पे आओ, दैट यू आर सर्विंग कृष्णा नॉट बिकॉज यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम this hellish conditions, but you want to serve Krishna. I was reading Mukund Mala Srot. There is a very beautiful verse in Mukund Mala Srot. Let me see अगर मैं पूरा बोल सकता हूँ. नाहं वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद्व हेतो तुम्बि पाकं नरकं वपि नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नंदनेनापि रन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्. Very beautiful words in which Mukund Maharaj is saying, नाहं वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद्व हेतो, कि भगवान मैं आपके चरणों में इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि इस भौतिक जगत के सुख दुख से आप मुझे मुक्त कर दें. द्वंद्व
अद्वंद्व, जो द्वंद्व है सुख दुख का, इससे मुझे आप फ्री कर दो। मैं इसके लिए प्रे नहीं कर रहा आपको। कुंभी पाकम, कुंभी पाक नर्क का नाम है, अलग अलग नर्क है, उसमें से एक नर्क है कुंभी पाक। कुंभी पाक में एक मटका होता है, उसमें तेल उबल रहा होता है और उसमें आपको डुबाते हैं, उसको कुंभी पाक कहते हैं। तो मैं कुंभी पाक जैसे नरकों से बचने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा। रम्या रामा मृदु तनुलता नंदने ना पिरंतु, कि जो नंदन कानन वन है स्वर्गों में, वहां पे रमणियों के साथ, रम्या यानी कि अप्सराओं के साथ आनंद लेने के लिए और विलास करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा। भावे भावे हृदय भवने भाव ये यम भवंतम, मैं तो चाह रहा हूं कि जन्म जन्मांतरों में मुझे केवल और केवल आपके चरणों का स्मरण हो। दिस इज द पोजिशन ऑफ सनातन धर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वैदिक स्क्रिप्चर्स आर गिविंग अस। दे आर नॉट, वो बता रहे हैं कि भाई ये नरक भी हैं, तुम्हें इससे भी बचना है, और जो सबसे निकृष्ट लोग होते हैं उन्हें हमें डराना पड़ता है, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट, दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। और हम उस पर इतना स्ट्रेस भी नहीं करते। आप सुन लो प्रोपा जी कितने लेक्चर्स है, हमारे इस्कॉन में इतने लेक्चर्स होते हैं, नरकों पे कौन 2-2 घंटा बोल लेता है, तू सड़ेगा नरक में, सड़ेगा नरक में। दे स्पीक अबाउट ब्यूटी ऑफ कृष्णा, दे स्पीक अबाउट द ब्यूटी ऑफ स्वीटनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। दे डोंट एक्सेसिवली स्ट्रेस ऑन नरकों में सड़ोगे। बट जो एब्राहमिक रिलीजन, ऑल्दो वहां पे कंसेप्ट है कि वी हैव टू लव एंड सर्व गॉड, बट वो कैसे होगा इसका कोई एम्फेसिस नहीं है ये कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट पूरी तरीके से एब्सेंट है, दैट यू हैव टू सर्व गॉड, यू हैव टू लव अल्लाह। बट अल्लाह तो कोई है ही नहीं, व्यक्ति नहीं है, उसके बारे में कुछ बात कर नहीं सकते आप, तो कैसे प्यार करोगे आप? Therefore it is a missing link कि आप ये जो लव है इसको कैसे स्टैब्लिश करोगे? Then there are 10 commandments given by Jesus Christ. Thou shalt not have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not take the name of Lord your God in vain. Remember and keep Sabbath day holy. Honor your father and your mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. And thou shalt not covet. There are 10 commandments. ये 10 commandments हमें actually मिलता है Old Testament में. Old Testament is accepted by Jews. New Testament is accepted by Christians. और Jesus Christ जो है वो Old Testament में जो 10 commandments होते हैं उनको चेंज नहीं करते, उन्हीं को दोबारा रिपीट करते हैं. So they may be talking about devotion of God initially, but beyond that, it is mainly mundane morality, and mundane morality is important, but it is not all important. If we see within these regulative principles, these 10 commandments, there is no direct instruction for doing any kind of sadhana. बस ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, करना क्या है फिर? There is no साधना का कोई concept नहीं है. स्पेशली क्रिश्चियनिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है. इस्लाम में देयर इज सम साधना दैट आपको 5 बार की नमाज पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, आपको एक ज़िंदगी में एक बार हज जाना है, आपको ऐसे करना है, ऐसा करना है. यू हैव टू सेक्रीफाइस. जब बकरीद आती है तो आपको सेक्रीफाइस करना होता है ऑन द नेम ऑफ अल्लाह. देयर इज सम कंसेप्ट ऑफ साधना दैट लाइक चैंटिंग एंड ऑल द थिंग्स. बट क्रिश्चियनिटी में तो स्टिल देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ साधना एट ऑल. So there is no direct instruction or doing any kind. There is no direct instruction for doing some sort of positive activity that connect people to God on a regular basis. So if you look at the contents of their instruction, they are largely influenced by mode of passion and ignorance. अगर आप थर्ड कैंटो पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का, इसमें कपिल देव is talking about भक्ति in modes of goodness, passion and ignorance. तो कोई कह सकता है कि अरे वो भगवान के डिवोशन की बात कर रहे हैं तो it must be भक्ति. But that bhakti is also influenced by modes of passion and ignorance. शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, there is no question of शुद्ध भक्ति. एंड देन देयर इज क्रिश्चियन एक्सक्लूसिविज्म. और ये एक्सक्लूसिविज्म तीनों में है. एक्सक्लूसिविज्म क्या है? ये आता है दिस स्टेटमेंट आता है. स्टेटमेंट पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम द वे टू द ट्रूथ एंड द लाइट एंड नो मैन कैन रीच द फादर बट बाई मी. ये कहा जाता है जीसस क्राइस्ट ने ये बोला है. एंड इट कम्स ऑल्सो इन न्यू टेस्टामेंट कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि कोई भी फादर तक नहीं पहुंच सकता एक्सेप्ट थ्रू मी. और ये स्टेटमेंट को क्रिश्चियंस यूज करते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है दैट यू कैन रीच गॉड ओनली थ्रू मी, देयरफॉर यू ओनली हैव टू सरेंडर टू जीसस क्राइस्ट. इफ यू सरेंडर टू एनीवन एल्स अदर देन जीसस क्राइस्ट, यू आर डूम्ड टू हेल. एनीवन. इसीलिए जीसस, जो क्रिश्चियंस है, दे आर सो एग्रेसिव कि नहीं, आपको जीसस के पास ही आना पड़ेगा, आपके पास कोई और आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है.
बट शिला प्रभुपाद ने कहा कि दिस इज अ लेटर एडिशन। और अगर वो सही भी है, अगर जीसस क्राइस्ट ने कहा भी है, तो ये उस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के लिए कहा होगा कि अभी इस परिस्थिति में आपको मेरे पास ही आना होगा। अब ये नहीं कह सकते कि शिला प्रभुपाद ये नहीं कह सकते कि अभी से लेकर और काल के अंत तक आपको मेरा ही शिष्य बनना पड़ेगा, आपको मेरे ही संप्रदाय में आना पड़ेगा भगवान तक पहुंचने के लिए। नहीं, किसी भी प्रमाणिक संप्रदाय में आप शुद्ध भक्ति करके, शुद्ध आचरणों का पालन करके भगवान तक पहुंच सकते हो। लेकिन जो एक्सक्लूसिविज्म है, ये जुडाइज्म में भी है, ये इस्लाम में भी है, इस्लाम में तो बहुत ही खतरनाक है, और क्रिश्चियनिटी में भी। और इसकी वजह से बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सीरियस फैलेसीज हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखी हुई हैं। So if you don't accept Jesus as savior, then these people have to suffer in hell. This is also, as I said, alienating a lot of people, because it raises a lot of serious issues. जैसे if a child dies prematurely before he is baptized, what happens to the child? क्योंकि baptize वो point है when he is surrendering to Krishna, to Jesus. दीक्षा हो रही है, दीक्षा से पहले उसकी डेथ हो गई, फिर वूम में डेथ हो गया, फिर है ना। So इस तरीके से और भी क्वेश्चंस है। अगर जो जीसस से पहले इस पृथ्वी पे आए, उनको तो जीसस के बारे में कुछ पता ही नहीं, they couldn't surrender to Jesus. This they cannot answer. ऐसा हो कोई अलास्का के गांव में कोई पड़ा हुआ, उसको जिंदगी में कभी भी क्रिश्चियनिटी का पता नहीं चला, फिर सो डिबेटिंग विद क्रिश्चियंस। अब आप कह सकते हो कि अच्छा हमें तो अच्छे पॉइंट्स मिल गए, भविष्य पुराण है, ये पुराण है, हम गॉस्पल ऑफ ये एक्वेरियन गॉस्पल है, ये है, वो है, हम सब ये पढ़ सकते हैं। बट शिला प्रभुपाद ने कहा वी नेवर हैव टू कोट दिस टू क्रिश्चियंस एंड दे विल नेवर एक्सेप्ट दिस अथॉरिटी, दे विल नेवर। Srila Prabhupada, I gave you all these hints not for general discussion but your personal understanding to know the respective position of different types of religious processes. So not for general discussion. This is what Srila Prabhupada says. So we don't have to go about condemning the religions, disturbing the people's faith and basically creating the resonance. जैसे कि हम सड़क पे जाके, मतलब कोई क्रिश्चियन बैठा हुआ है, हम जाके अरे तुम्हारा क्या रिलीजन है, दैट इज फॉल्स रिलीजन, ये देखो हमारे साथ डिबेट करो। We don't have to do that. We have to follow our philosophy correctly. Okay, I'm just quickly covering points. मतलब ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा एक पॉइंट पे, बिकॉज इवेंचुअली हमारा गोल क्रिश्चियनिटी को एज अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं समझना है, एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से क्रिश्चियनिटी को समझना है। इसलिए विल जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दिस हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स होते तो हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे होते, बट ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इसलिए वी आर जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दिस। सो वी डोंट हैव टू गो अराउंड डिस्टर्बिंग क्रिश्चियंस। हाँ, कोई हमारे पास डिबेट करने आता है, देन वी विल डिबेट। जो मैं आपको शुरुआत में वीडियोस दिखा रहा था, वो मुस्लिम व्यक्ति जो डिस्कस कर रहा है, हमें वैसा हमेशा करने की, एक तो पहली बात तो हमारे पास इतने दमदार डिवोटीज हैं नहीं जो वैसे डिबेट कर पाएँ, तो सो दैट इज़ वन पॉइंट। बट हमें वैसा करना भी नहीं है। शिला प्रभुपाद ने जो हमें प्रोजेक्ट दिया है दैट इज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे 5-10 मिनट की प्रीचिंग से कुछ नहीं होने वाला है। वी डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एंड वी गिव सम माइनर फिलॉसफी हियर एंड देयर, बट द रेस्ट वी leave it to books, that books will do the job. So that is the point. So we don't stress too much on कि नहीं हमें एक से जाके डिबेट करना, that's not our point. सिर्फ डिबेट करना, तर्क करना, वाद करना is not a very intelligent thing to do. So Christianity after Jesus, तो जीसस का रिजरेक्शन हुआ, जीसस दोबारा उठ गए, they felt Jesus was alive and Jesus was still blessing them and empowering them. They took it as Jesus died for our sins and now it is for us to die for his cause. Do whatever is required. अभी क्या हो गया, जीसस के जो 12 apostles थे, जो जीसस के 12 मेजर डिसाइपल्स थे, उन्होंने दुनिया के अलग अलग कोनों में जाना शुरू किया। तो उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइपल था जिसका नाम था पाल। He went to Rome and he started preaching there. लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि पाल और एक और अपोस्टल वहाँ गए थे, his name was पीटर। उनके बीच में ना देयर इज डिफरेंस ऑफ फिलोसफीज। क्या डिफरेंस ऑफ फिलोसफी हुआ क्रिश्चियंस के बीच में? एक पाल ये कह रहा था कि जीसस क्राइस्ट केम एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू रिलीजन ऑल टुगेदर, बट दूसरों ने कहा कि नहीं जीसस क्राइस्ट तो जुडाइज्म के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको रिजॉल्व करने आए थे। इस तरीके से क्रिश्चियनिटी में एक स्प्लिट था, उनके व्यूज में एक स्प्लिट था। लेकिन एनीवे वो प्रचार कर रहे थे, सब अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे थे। एंड देन पाल ही वाज प्रीचिंग इन रोमन एम्पायर, और वहाँ पर एक रोमन किंग थे नीरो। उन्हें पता चला कि भाई ये अलग धर्म का प्रचार किया जा रहा है, ये लोग हमारे जो रोमन फिलोसफी है, रोमन कल्चर है, उसको अपोज करके क्रिश्चियन कल्चर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ही किल्ड नीरो, ही किल्ड पीटर।
4th सेंचुरी तक, मतलब 300 साल तक, तो जीरो टाइम लाइन पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ. 1st, 2nd, 3rd सेंचुरी, 300 साल तक क्रिश्चियंस वर परसिक्यूटेड. जहां गए उन्हें पीटा गया. इवन व्हेन दे केम टू साउथ इंडिया, दे वर अब्यूज्ड, दे वर टॉर्चर्ड. बट फिर क्वेश्चन आता है कि ये क्रिश्चियनिटी पूरा एक वर्ल्ड रिलीजन कैसे बन गया? अगर इफ इट वाज टॉर्चर्ड, व्हाई डिड इट बिकम, हाउ डिड इट बिकम अ वर्ल्ड रिलीजन? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. इट जस्ट हैपेंड ओवरनाइट. मतलब ऐसा था कि कल तक क्रिश्चियंस को कोई देखना नहीं चाह रहा था और सब मार रहे थे, और अगले दिन क्रिश्चियनिटी दुनिया का रिलीजन बन गया. इट जस्ट हैपेंड ओवरनाइट. अगर देखते हो, मतलब अगर एक सिंसियर डिजायर है दैट वी हैव टू preach the message of God, we have to connect people with what we have got, then Krishna reciprocate. आप किसी भी religion के हो, and that's what happened with Christians. They became world religion overnight. और ये बहुत interesting कहानी है. Roman king था, he was तो यहाँ पे है Roman Weds Christians. I think पीछे से शोर आ रहा होगा. शादियाँ हो रही हैं मोहल्लों में, लोग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खुश हैं शादियों को लेकर, like पागल लोग. सो एक रोमन किंग है कॉन्टेस्टीन्स. उन्होंने देखा कि उनका जो समाज है इसमें पीपल वर वेरी वेरी इमोरल. लोग कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह की मोरालिटी, रिलीजियसनेस, रूल्स, इनफैक्ट किसी पे भरोसा नहीं कर सकता. वो राजा किसी को मंत्री नहीं बना पा रहा कि भाई कोई भी मेरे राज्य में भरोसे लायक नहीं है कि किसको मंत्री बनाओ. और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो राज्य में ढूंढने लगा कि यार कुछ मेरे पास अच्छे लोग हों, कुछ धर्म वरम करने वाले हों, कि इनको बुला के बोलूँ कि यार इनको कुछ धर्म वरम सिखा दो, किस तरीके से चीज़ें, फिलोसफी. और जब ये राजा है, ही स्टार्टेड सर्चिंग इन हिज किंगडम, तो उन्होंने देखा कि यार क्रिश्चियंस तो बहुत अच्छे लोग हैं. दे आर वेरी वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, और काफ़ी रिचुअल्स वो फॉलो करते हैं. दे आर डिवोटेड टू गॉड, दे आर सरेंडर्ड टू गॉड, दिस एंड दैट. सो ही ओवरनाइट ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी को उसने पूरे स्टेट का रिलीजन बना दिया. कल तक उसी रोमन एम्पायर में क्रिश्चियंस को मारा जा रहा था, और अगले दिन पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी का प्रचार होने लग गया और पूरा रोम क्रिश्चियन बन गया. दैट वॉज जस्ट ओवरनाइट. किस तरीके से भगवान ने पूरा पलट दिया. एंड उसके बाद चीज़ें बिल्कुल पलट गई. वो क्रिश्चियन जो कल तक पिटाई खा रहे थे, अब उन्होंने दूसरों के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया. जिसने भी क्रिश्चियन वैल्यूज को अपोज किया, जिसने भी क्रिश्चियन रिलीजन को अपोज किया, जस्ट स्मैश देम, कंप्लीटली बर्बाद कर दो. और जैसे जैसे रोमन एम्पायर फैलना शुरू हुआ, वैसे वैसे तो जैसे जैसे रोमन एम्पायर फैलना शुरू हुआ, वैसे वैसे क्रिश्चियनिटी भी रोमन एम्पायर के साथ बढ़ना और फैलना स्टार्ट हो गई. लेकिन अभी भी क्रिश्चियनिटी के पास कुछ इंपॉर्टेंट थियोलॉजिकल क्वेश्चंस थे जो जिसके आंसर्स नहीं थे. कि भगवान एक है या तीन है, कि गॉड और स्पिरिट, होली स्पिरिट, और गॉड द सन, जीसस, क्या ये तीनों एक हैं, ये तीनों अलग हैं? गॉड और जीसस का क्या रिलेशन है? जीसस स्पिरिट का क्या रिलेशन है? स्पिरिट गॉड का क्या रिलेशन है? ये होली स्पिरिट को कभी कभी होली गोस्ट भी कहते हैं. एक बार प्रभुपाद जी से डिसाइपल ने पूछा कि प्रभुपाद, इज होली गोस्ट प्योर? प्रभुपाद ने कहा नो टाइप ऑफ गोस्ट इज प्योर. तो लेकिन ये होली गोस्ट को जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई पोजीशन दिया था, प्रभुपाद ने कहा नो गोस्ट इज प्योर, एवरी गोस्ट इज इम्प्योर. सो इस तरीके से क्रिश्चियनिटी के पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे थियोलॉजिकल जिसके आंसर्स नहीं थे. बट इवेंचुअली उन्होंने 200-300 साल लगा के आगे 300 साल और में अपने जितने भी थियोलॉजिकल क्वेश्चंस थे उसको आंसर किया, और इन सब के बीच के रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया. कमिंग अहेड, फिर क्रिश्चियनिटी में स्प्लिट कैसे हुआ? तो 00 पे जब BC AD जो है वो BC में कन्वर्ट हो रहा था, देन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ. एक्चुअली जीसस क्राइस्ट का भी जन्म 25th सेंचुरी को नहीं हुआ, सॉरी 25 दिसंबर को नहीं हुआ था. एक्चुअली किसी को नहीं पता जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि why is 25 December celebrated as birth of Jesus Christ. किसी को नहीं पता जीसस क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था. बट एक्चुअली जब ये इब्राहिमिक रिलीजन्स फैल रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल रिलीजन्स थे, दे वर कॉल्ड पेगन्स. और वो लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, पेगनिज्म कहते हैं उसको. सो पेगन्स वर देयर, और पेगन्स के अलग अलग देवी देवताओं की वर्शिप कर रहे थे. तो ये जो इब्राहिमिक रिलीजन जिस एरियाज में फैलते ना, वहाँ के फेस्टिवल्स को अपना फेस्टिवल बना लेते, वहाँ के फेस्टिवल्स को अपना लेते थे और उसको अपना रंग दे देते थे. तो एक्चुअली इनका अपना कोई फेस्टिवल नहीं है, इट इज मेजरली पेगन फेस्टिवल्स, एंड दे सेलिब्रेट दोज पेगन फेस्टिवल्स. सो एक्चुअली 25 दिसंबर के आसपास पेगन्स ना अपना एक फेस्टिवल बनाते थे, बट क्रिश्चियंस दे चेंज्ड इट, and then came the concept of Christmas. But it's not the actual birth date of Jesus Christ. No one knows what is the actual birth date of Jesus Christ.
सो अभी तो 00 पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, 300 साल तक ये लोग पिटते रहे, फिर 300 से लेकर 600 साल तक, ऑल्दो ये दुनिया पूरी दुनिया में फैल रहे थे, उन्होंने अपने आप को थियोलॉजिकली इस्टेब्लिश किया, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है, क्योंकि रोमन एम्पायर वॉज वेरी पावरफुल, और जहाँ जहाँ रोमन एम्पायर जा रहा था, और रोमन एम्पायर वॉज टेकिंग क्रिश्चियनिटी अलॉन्ग विद इट। 10th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी में पहला स्प्लिट हुआ ऑर्थोडॉक्स चर्च और कैथोलिक चर्च के बीच में, एंड देन और भी स्प्लिट्स हुए, और इन चर्चेस के बीच में आपस में बहुत सारे फिलोसॉफिकल डिबेट्स थे कि अलग अलग चीज़ों को लेकर, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। एंड इवेंचुअली जो कैथोलिक चर्च था उसकी इच्छा थी कि ना हमें बहुत बड़े बड़े चर्चेस बनाने हैं, जिस बड़े बड़े चर्चेस से हम अपना प्रभुत्व जमाएंगे कि वी आर द बेस्ट, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता, और उन्होंने इसके लिए पैसा चाहिए था, तो पैसा कहाँ से आएगा, लोगों से आएगा। देन दे केम अप विद दिस कंसेप्ट कि आपको अगर किसी भी पाप से छुटकारा चाहिए, आप इतने पैसे दे दो, ये पाप से छुटकारा मिल जाएगा, इतने पैसे दे दो, ये पाप से छुटकारा मिल जाएगा। इस तरीके से पाप को पैसों से एक्सचेंज करेंगे, जो कि जीसस क्राइस्ट का कंसेप्ट नहीं था। जीसस क्राइस्ट का कंसेप्ट था कि पाप से बचने के लिए यू विल हैव टू रिपेंट, रिपेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैसा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन कैथोलिक चर्च इस कंसेप्ट को लेकर आया कि नहीं, यू नीड टू हैव, आप पैसे दो और आप अपने पाप से मुक्त हो जाओ। जब ये चीज़ें लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगी, देन कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं, हम कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को नहीं मानेंगे, हम कैथोलिक चर्च को ही नहीं मानेंगे। तो फिर एक दूसरा स्प्लिट हुआ, तो अभी कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च था, नाउ केम अ डिफरेंट स्प्लिट, इसको कहते हैं प्रोटेस्ट। जिन लोगों ने किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च बनाया। तो ये मार्टिन लूथर जूनियर, ये सब जितने भी थे, दे वर पार्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। तो इस तरीके से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, अलग अलग जो डिविजन्स हैं वो क्रिश्चियनिटी में होने लगे ओवर द टाइम। दिस वाज हाउ क्रिश्चियनिटी स्प्लिट इनटू डिफरेंट schools. So okay, this is the last view of it. So Christian view of Hinduism. तो क्रिश्चियनिटी इंडिया में भी आया। तो जो फ्रेंच थे, दे केम टू, पोर्टुगीज थे, दे केम टू गोवा, फ्रेंच में भी दे केम टू पुडुचेरी, एंड ब्रिटिशर्स दे केम थ्रू बंगाल। और ये सब मेजरली कैथोलिक्स हैं, इसलिए जब ये इंडिया में आए तो अपने साथ कैथोलिक क्रिश्चियनिटी लेकर आए, प्रोटेस्टेंट या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी नहीं लेकर आए। और क्रिश्चियनिटी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जिस तरीके से साउथ अमेरिका के जो पूरे जितने भी रिलीजन्स थे, जितने भी ट्राइबल रिलीजन्स थे, उस सबको ख़त्म करके इस्टेब्लिश्ड क्रिश्चियनिटी। नॉर्थ अमेरिका के जितने रिलीजन्स थे, जितने भी नेटिव नॉर्थ अमेरिकन थे, अभी उन सब की लाशें निकल रही हैं बच्चों की, आप सबने न्यूज़ पे देखा होगा कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले। कनाडा में व्हाट दे यूज्ड टू डू, कैथोलिक चर्च जितने भी नेटिव लोग थे, उन सभी नेटिव लोगों को लाकर ये लोग स्कूलों में डालते थे, उन्हें कहते थे तुम अपनी लोकल भाषा मत बोलो, लोकल धर्म का पालन मत करो, उनको क्रिश्चियनिटी सिखाते थे, उनको इंग्लिश सिखाते थे। मैनी ऑफ देम वर किल्ड ड्यूरिंग देयर एंटायर फेज, और एक बहुत हॉररफुल फेज था। नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, दे वर इरेज्ड, दे वर डिस्ट्रॉयड। रशियंस जहाँ जहाँ गए, वहाँ के नेटिव रिलीजन को मतलब खा गए पूरी तरीके से। यही काम मुस्लिम्स ने भी किया। ज्यूज ये कभी कर नहीं पाए, पर यही काम मुस्लिम्स ने भी किया। लेकिन हिंदुस्तान में ना तो मुस्लिम्स पूरी तरह सक्सेसफुल हुए और ना ही क्रिश्चियंस पूरी तरह सक्सेसफुल हुए। एंड दैट वाज ड्यू टू टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पहला, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर आचार्यस, और जिस तरीके से उन्होंने वैदिक लिटरेचर्स को इस देश के नस नस में घुसा दिया था। एंड सेकेंड वॉज द कैपेबिलिटी ऑफ हिंदुइज्म, ऑफ सनातन धर्म टू अडॉप्ट एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। क्योंकि एक्चुअली एक ये डिफेक्ट भी है हिंदुइज्म का, बट एक ये पॉजिटिव पॉइंट ऐसे निकला कि हिंदुइज्म में कुछ भी ना रिजिड प्रैक्टिस नहीं है। देयर इज नो वन रिजिड बुक, देयर इज नो वन रिजिड गॉड, देयर इज नो वन रिजिड स्क्रिप्चर, देयर इज नो वन रिजिड प्रैक्टिस। सो एवरीवन कैन प्रैक्टिस हिंदुइज्म इन देयर ओन वे। इसलिए जब भी क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स ने हिंदूज को टॉर्चर करने की कोशिश की, हिंदूज ने कुछ ऐसा कर लिया, अपने आप को सबसे मोल्ड कर लिया, एंड देन दे वर रेडी टू प्रैक्टिस हिंदुइज्म इन दैट वे, इन दिस वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा थी। सती प्रथा वॉज वेरी प्रोमिनेंट, बट उन्होंने कहा नहीं, सती प्रथा बंद कर देंगे। ठीक है, सती प्रथा बंद कर देंगे। कोई ऐसा नहीं था कि सती प्रथा बंद कर देने से तुम्हारा पूरा धर्म ही खतरे में आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स दे डू सर्कमसिजन। अगर आप सर्कमसिजन बंद करते हो तो पूरा धर्म ही खतरे में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो रिलीजन का।
बट ऐसा हिंदुइज्म में नहीं है ऐसा कुछ भी। बोलेंगे शिखा नहीं रखनी, ठीक है बिना शिखा रखे भक्ति, नहीं तुम्हें तिलक नहीं लगाना, ठीक है बिना तिलक लगाए कर लेंगे। कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं, आज से ये किताब पूरे देश में बैन कर दी, ठीक है हम कोई और किताब पढ़ लेंगे। तो गीता बैन करो, हम रामायण पढ़ लेंगे, रामायण बैन करोगे, महाभारत पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। और इस टाइम पे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए एक्चुअली, राजा राम मोहन रॉय और ये बहुत सारे, इन्होंने एक्चुअली हिंदुइज्म का फ़ायदा करने के बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा किया। राजा राम मोहन रॉय वॉज अ वेरी evil person. He was actually an ambassador of Christians, and he did everything he could to deform and destroy. Not intentionally, unintentionally, but yeah, he did harm Hinduism a lot. And उसके बाद क्रिश्चियंस ने कहा कि हिंदुओं को ऐसे तो हम तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने दो तरीके निकाले हिंदुओं को तोड़ने के। पहला उनके एजुकेशन सिस्टम पर अटैक करो, एंड दूसरा सोशल वेलफेयर वर्क करो। और इसके लिए मदर टेरेसा और ये सब दे बिकेम वेरी पॉपुलर। आज तक ये सोशल वेलफेयर वर्क चल रहा है, आटा दो, चावल दो, एंड लाइक दैट इट हैपेंस। सो क्रिश्चियन व्यू ऑफ हिंदुइज्म क्या था? तो क्रिश्चियंस को हिंदूज में 3 फंडामेंटल फ्लॉज दिखे। पहला आइडल्ट्री, जो कि बैंड है एज पर देम, दूसरा कास्ट सिस्टम, और तीसरा पॉलीथीज्म। एंड हिंदुइज्म पे वो कभी भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं ले पाए। अप्रोच एक स्टोरी में एक लेक्चर में सुन रहा था, चेतन चरण प्रो जी के लेक्चर में सुन रहा था कि उन साउथ इंडिया में एक डिवोटी थे, उनका नाम था नारायण। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोग सुना। तो नारायण जो है ना, वो उन्होंने देखा कि मेरे एरिया में ना 12 चर्च हैं, तो उन्होंने 12 चर्चेस को वो लिखा लेटर कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट क्रिश्चियनिटी, कैन यू प्लीज हेल्प, कैन यू प्लीज सेंड सम बुक्स। 12 जस्ट एज एक्सपेरिमेंट कि ये चर्चेस कैसे रिएक्ट करते हैं। विद इन फ्यू डेज उन डिवोटी के पास अलग अलग तरह की बुक्स, पैम्फलेट्स, फला डिमका सब पहुंचना शुरू हो गया। फिर उसके बाद एक दिन उन्होंने क्या किया, अमेरिका में लेटर भेजा। अमेरिका के जो चर्च है, कैथलिक चर्च है, उस पर लेटर भेजा कि आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट क्रिश्चियनिटी, कैन यू प्लीज हेल्प। और कुछ दिन बाद उनको कॉल आया उनके एक लोकल चर्च से, जिसमें वो फादर कह रहे थे कि आप क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप प्लीज चर्च आ जाइए, लेट्स हैव सम डिस्कशन। तो वो जब चर्च गए तो उन्होंने देखा कि मैंने लेटर तो अमेरिका भेजा था, आपके पास कैसे आया? तो कह रहे कि एक्चुअली जितने भी चर्चेस हैं वो सब कनेक्टेड हैं। आपने जब अमेरिका भेजा तो अमेरिका वालों ने वही लेटर जो उन्होंने अमेरिका भेजा, अमेरिका वालों ने वही लेटर इनको भेज दिया इस चर्च में, एंड दे टोल्ड मी टू कनेक्ट विथ यू एंड टेल मी हाउ कैन आई सर्व यू। जस्ट सो सुपरफ्लुअस सिस्टम है। ऑल्दो वो मटेरियल एल्योरमेंट्स दे रहे हैं क्रिश्चियंस, ऑल्दो वो लोगों को कह रहे हैं तुम पानी पी लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लकवा ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, बट जो मिशनरी स्पिरिट है ना क्रिश्चियंस के अंदर, दैट इज क्रेजी मिशनरी स्पिरिट, एंड देयरफॉर दे आर सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट। हिंदूज में कहीं ना कहीं वो मिशनरी स्पिरिट नहीं है, वो मार मिटने का स्पिरिट नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है, इसलिए हम पिटते हैं हमेशा। सो दैट माय डियर फ्रेंड्स इज Christianity. Maybe I'll try to have one more session of discussion जहाँ पे हम Christianity के theological arguments और उसकी philosophy पे थोड़ा discussion कर पाएंगे. But I think this is what we have for today. Any question, comments, revolts, suggestions, agreements? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। आप बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म मतलब इतना रिजिड नहीं था कि हम बहुत सारे वो थे, मतलब तो जनरली मतलब लोग भी तो यही बोलते हैं इस्कॉन के बाहर कि इस्कॉन रिजिड बना रहा है, मतलब वन गॉड वन प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। एक्चुअली आज ना मेरा पूरा दिन इसी में बीता, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वैसे मैं कह रहा था कि हमें डिबेट्स वगैरह नहीं करनी चाहिए, बट एक्चुअली आज मैंने पूरा दिन डिबेट ही किया। मैं किससे डिबेट किया? तो एक्चुअली देयर इज़ अ ग्रुप, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। देयर इज़ अ ग्रुप बाय द नेम द सीकर, मैं व्हाट्सएप पे है मेरे, तो आई विल जस्ट शेयर। दिख रहा है व्हाट्सएप, दिख रहा है? सो ये ग्रुप है द सीकर्स, दिख रहा है सबको? हाँ प्रभु दिख रहा है। तो इसमें एक्चुअली मेजरली सारे मायावादी हैं। तो अब सुबह से देख रहा हूँ, मतलब मैं मैसेज डाले जा रहा हूँ इस पर, जस्ट डिबेटिंग विद देम। यूजुअली मैं नहीं करता क्योंकि इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, 50 सेवाएं होती है, बट 2-3 महीने में एक दिन जब थोड़ा रहता है ना कि मतलब कुछ किया जाए, आज बोर हो रहा हूँ,
एक्चुअली हुआ क्या था कि कल मैंने यहाँ पर अमोघ इस पे ना बहुत सारे उसके फ़ैन हैं, आचार्य तो है नहीं, वो प्रशांत के फ़ैन हैं। तो कल मैंने अमोघ प्रोजी की वाली वीडियो डाल दी। वो वाली वीडियो डाल दी, क्या कहते हैं, जो प्रशांत की वीडियो का प्रोजी ने अच्छे से पीटा उसको। तो उसमें क्या है कि इसके जो कुछ भक्त हैं वो परेशान हो गए कि अकॉर्डिंग टू प्रभुजी, वन हु डजंट बिलीव इन द टेस्टिमनी ऑफ कुरान इज अ नास्तिक एंड गोज टू हेल। आई कैन स्मेल कुरान एंड हदीथ इन हिज आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें फिर मैंने भी कुछ जस्ट अ करेक्शन, प्रोजी इज नॉट सेइंग एनीथिंग यूनिक टू हिज प्रेजेंटेशन फिलॉसफी, इज बैकिंग ऑल हिज क्लेम्स फ्रॉम बोथ श्रुति एंड स्मृति। It will be better if you center your arguments from शास्त्र command. He's validating the authenticity from श्रुति। इस तरीके से काफ़ी फिर ये भाई साहब ये पॉइंट लेकर आए जिसको मैंने ग्रुप पे भी डाला, कॉमेडी वाला पॉइंट, भारत वैदिक धर्म में सिर्फ 6 शास्त्र हैं। तो इनका कि थोड़े और मजे लेकर कोई सज्जन इन्हें षड्दर्शन शास्त्र को बीच अंतर बताए। सो इस तरीके से फिर देन वो जो दीपक प्रू का आर्ग्यूमेंट था वो मैंने पूरा ही डाल दिया यहाँ पे, पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल। और इस तरीके से पूरा दिन ऐसी डिबेट चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो आप कह रहे हो ना कि इस्कॉन को सब कहते हैं कि इस्कॉन जो है वो इब्राहिमिक रिलीजन से बहुत मैच करता है, वो आप देख लो इस डिस्कशन में वो पॉइंट कई बार आया है। यहाँ पे भी उसने बोला है कि आई कैन स्मेल कुरान एंड हदीथ इन हिज आर्ग्यूमेंट्स। एंड थ्रू आउट दिस डिस्कशन में बार बार स्क्रिप्चर्स को वो कर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, और आचार्य को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप जो भी कह रहे हो क्या वो आचार्यों के द्वारा स्टैब्लिश्ड है। जैसे कि वो ये कह रहा था कि जितनी भी मेजरली जितनी स्मृति और श्रुति में जो इंसिडेंट्स हैं वो सब एक्चुअली कुक्ड अप इंस्टेंसेस हैं, वो एक्चुअल इंस्टेंसेस नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है, नाउ आई एम नॉट सेइंग महाभारत एंड रामायण आर टोटली बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, नो, डेफिनेटली सच कॉन्फ्लिक्ट्स हैव हैपेंड इन पास्ट एंड दैट्स व्हाई महाभारत एंड रामायण आर कॉल्ड इतिहास. But we have to understand the core Mahabharata and Ramayana didn't have so many verses, but when later editions came out, after reedit, several interpolations happened. समझ रहे हो? तो आगे इसमें क्या है? I don't say any, but all form of sahityas have their own format of delivering truth. Puran as well as Vedic literatures follow the format of metaphors. Metaphors. They are metaphors. They are not reality. Because our common mind can grasp lores and stories very easily, if you deliver raw philosophy in front of a layman, they won't understand. That's why stories of Jatakas are also found. Even if you read later Buddhist texts, there are elements of kathas, like Buddha coming into womb of his mother, white elephant. So even in the primary schools, many stories were written in our books whose underlying purpose is teaching ethics. तो ये just कह रहे हैं कि आप ये शास्त्र सारे सही नहीं है. These are just metaphors. They are not solid 10% truths, which we as ISKCON followers we don't agree. We say Shastra is truth word by word. There is no question about doubting the authenticity of Shastra. और इसलिए मैंने पूछा इनसे कि if this is so, why was this never expressed by Ramanuja, Madhva, Vallabha or other masters of Vedic literatures? Why has this idea, like the British, like the Aryan invasion theory, started floating among the masses only after the Britishers? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये मकाले के इंटरपोलेशन, मकाले ने जब एडिट किया स्क्रिप्चर्स को उसके बाद ये कंसेप्ट आया कि ये सब जो है लोर्स हैं, ये सब कहानियां हैं, ये सब सच नहीं है. सो ब्रदर, योर स्क्रिप्चर्स आर नॉट जस्ट mere stories like Jatak, Tales or Panchtantra, they are real events. Why are you baffled by Makale's presentations? And then I brought this point that Indian accused ISKCON of being operated by Westerners to harm our culture, but here are we fighting to establish our scriptures while everyone else is claiming that it's just stories. एक बहुत ही बड़ा फाइट एक्चुअली ISKCON और ट्रेडिशनल हिंदुइज्म के बीच में. एंड आई एम आस्किंग हिम अगेन एंड अगेन कि भाई कुछ तो प्रमाण दे दे, एनी प्रमाण, एनी राइटिंग ऑफ दिस कि ये सब कहानियां हैं, ये सब कुछ सही नहीं है, फ्रॉम मध्वा, रामानुजा, वल्लभा, शंकरा, कहीं से दे दो, शंकराचार्य से दो. शंकराचार्य भी एटलीस्ट चलो पुराणों को जो बोले, वेदों को इज एक्सेप्टिंग वर्बेटिम. वेदों में देयर इज नो कंफ्यूजन, बट दे डोंट एक्सेप्ट दिस. So they don't, and even I'm saying you can prove this from any of Shankara's works, up to you. Your claim is that even Shruti is majorly made up. वेदों को भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे. So back with Advaiti and Acharyas, you are free, do it, step back, do it or step back. So इस तरीके से ये सुबह से ये डिबेट चल रहा है.
And then he said, I have proofs, मेरे पास proofs, I can share verses from Brahma Sutra, but I need to check ये वो सब 50 तरह की चीजें. But जो वेदांत सूत्र का तीसरा सूत्र है वो कहता है शास्त्र यूनित्वा. Shastra is the source of true knowledge. If Shastra is the source of true knowledge, how can Shastra be stories? This is our question. And then he is saying कि how will you support Brahma marrying his daughter Shatrupa? शत्रुपा से तो विवाह किया नहीं था, मनु ने शत्रुपा से विवाह किया था, ब्रह्मा ने सरस्वती से किया था. पागल आदमी. Written in Puranic literature, ethically, if you take those stories literally. Although ये सब arguments मैंने आंसर नहीं किए, the time नहीं था. Only if you treat the text as a metaphor, not as a real incident, you can give meaningful explanation. Else it will become an incest story for bhaktas. Incest मतलब घर में ही physical relations बनाना. And then ये एक और चाचा जी आए हैं, वो अपना Kunti's another name. They see these stories are metaphors involving dimensions. The sun cannot have sex with Kunti. Kunti's another name is Pritha or the earth, and the sun produced in union of earth all the dimensions that Karna represents. समझ रहे हो? The very name Shatrupa should reveal it is a metaphor, and the author of metaphor only trying to describe his imagination of the process of creation, where Brahma is the creative dimension, and Shatrupa are hundreds of forms in female gender help in taking the creation forward. You see how dangerous is this? And then I'm saying again, I will agree with everything you said, only if you establish these wild allegories from authorized Vedic acharyas. But now I can come up with completely different explanations for each of these events. And then the debate will enter into the domain of hermeneutics. Hermeneutics मतलब शास्त्रों को अलग-अलग understanding शास्त्रों की अलग-अलग तरीके से पढ़ना. That's another big subject. So kindly prove your claim and then let's take it ahead. And then he says this: you are talking like mainstream Muslims. If anything not sanctioned by Muhammad, we won't believe anything. We won't entertain new prophets, new scholars. This kind of attitude gives rise to parochialism. I don't know if I'm pronouncing this correct, but parochialism का मतलब होता है narrow mindedness. तो इस तरह की चीज़ जो है वो narrow mindedness का जन्म देती है, according to him. अगर आप new prophets और new scholars को, and then he said, with all due respect to medieval scholars, we need new scholars who can breathe fresh air in commentaries on Sanatana Dharma. और इनके new scholars कौन है दिखाता हूँ. New scholars दिखाता हूँ इनके, इन शूद्रों के new scholars. इन्होंने नाम लिखा है भाई साहब ने. ये देखो, ये इनके स्यूडो फिलोसफर्स: ओशो, आर्य समाज, आचार्य जी, आर्य समाज, ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये सब इनके न्यू फिलोसफर्स हैं. कुकर शुकर सारे. ये इनको कुछ पता नहीं वेदों का क्या है, कुछ आता पता नहीं है. ये आचार्य जी तो रोज ने तोड़ी थी, पीट पाट दिया है इसको. आर्य समाज को भी पीटा हुआ है एक वीडियो में. और ये ओशो जी की बेचारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गया, वो गर्लफ्रेंड इन पे डॉक्यूमेंट्री बना रही है. और जिद्दू जी जो है वो मायावादी हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति. ये इनके मॉडर्न डे फिलोसफर्स हैं. समझ रहे हो? इतने अच्छे दार्शनिक हुए, उन्हें ही पढ़ लीजिए, ये इनके लिए दार्शनिक है. तो हम लोग अपना पूरी सब्जी खाने में लगे हुए हैं संडे संडे को, और दुनिया ऐसे बढ़ रही है आगे. एंड देन एक और पागल आदमी है, वो अपने आप को आचार्यों से कंपेयर कर रहे हैं. दिखाता हूँ मेरे को, मेरा तो खून खौल गया उस टाइम पे. Let me show you all. ये देखो, एक है प्राजेश बनर्जी, 90 साल का आदमी है, अपने आप को बहुत बड़ा कहीं का फिलोसफर समझता है. तो मैंने जब कहा कि आप अगर आचार्यों से कोट कर दोगे तो मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर लूंगा, बिकॉज आचार्यज आर द अथॉरिटीज. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द एक्स्ट्रा फैकल्टी दैट दीज वैदिक आचार्यज हेल्ड एंड आई डोंट. इसकी औकात देखोगे, मतलब ये अपने आप को आचार्य से कंपेयर कर रहा है, कि पूछ रहा है कि ऐसा क्या है जो आचार्य के पास है और मेरे पास नहीं है. एंड देन मैं तो थोड़ा बेइज्जती भी, मतलब थोड़ा. आप बताओ, आप लोग बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए. इस तरह के धूर्त लोग हैं दुनिया में, कह रहे हैं कि आचार्य के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है. इस सुअर का बच्चा.
So this is the position. प्रभु जी, And the लेकिन proof, वो लोग, हाँ, and ये the proof of मायावादी, my, हाँ बोलिए बोलिए। and the proof of my claim lies in the absolute truth that sun or air cannot take human forms and have sex with a woman, inserting in their vagina. It is sheer common sense. A star that is living nuclear bomb can't come down on Earth. इस तरीके से they are trying to understand it with logic. And then they say again, I find no difference with you and the Afghan who starts माँ बहन की गाली when they run short of arguments. और गाली तो दी भी नहीं थी मैंने उसको वो मोटा और बदसूरत बोला था, है ही वो, तुम बोलो नहीं। वो आचार्यों को हमसे कंपेयर कर रहा है। आचार्य they created oceans of realized Vedic knowledge, they instituted Vedic schools, they established magnificent temples, they made thousands of disciples, they created army of Vedic scholars, they fought against the adharmic principles, they wrote commentaries on and explained deep contradictions. ये अपने आप को आचार्य से कंपेयर कर रहे हैं। And then I say, tell me one thing that you achieved. And then you have the audacity of comparing yourself with Shankaracharya and Ramanujacharya. Dare not compare your ugly useless self to these worshipful acharyas. But then he said कि तुम गाली देने लग जाते हो, मतलब तुम लोग अफगान हो, तालिबान हो तुम लोग, हैं? तो इस तरीके से ये भाई साहब फिर और भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। You see, this is the situation. बीच बीच में मैं डिबेट इसलिए करता हूँ, थोड़ा मेरे को ना, थोड़ा कभी कभी लो जाता है ना भक्ति में, तो फिर मज़ा आता है, एक दो से लड़ लुड़ के थोड़ा सा लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ करना है, सुनना नहीं है अब घर जाके। प्रभु जी, विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य की फिलॉसफी है। विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब उनके कहीं कहीं अद्वैतवाद दिखता है। उन्होंने कंप्लीटली अद्वैतवाद से अपने को अलग नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम भगवान से पूरी तरीके से अलग नहीं है। जैसे मतलब जैसे कहते हैं कि जीवात्मा और भगवान जो अलग है, लेकिन शिव जी और भगवान मतलब राम जो वो एक ही है, तो ये भी तो अद्वैतवाद ही हुआ ना। जैसे रामचरितमानस में बताते हैं, रामचरितमानस इज रामचरितमानस we don't authorize रामचरितमानस, we don't authorize रामचरितमानस। जैसे कुछ लोग कोट करते हैं, मतलब तो मतलब वो कोट करते रहते हैं रामचरितमानस से, तो मतलब उनका तो ये कंसेप्ट है ना कि मतलब हम कह सकते हैं ना कि हम तुम्हारे आचार्यों की बात क्यों माने, हमारे पास क्या अपने आचार्य नहीं है, बल्कि हमारे आचार्य पहले के हैं उससे भी, तो फिर तो वो ही नहीं बनता ना कि अब वो रामचरितमानस से कोट कर रहे हैं। हमारे आचार्य ब्रह्मा जी, उनसे पहले नहीं, तुलसीदास जी से पहले चैतन्य महाप्रभु, षट गोस्वामी, ये पहले हैं उनसे। देखो हमारा तो मतलब जो किसी के साथ हम किसी ऐसे में नहीं बैठे हुए कि हमारा लक्ष्य है तुलसीदास जी को गलत प्रूव करना, बट भक्तिसिद्धांत महाराज ने रामचरितमानस पढ़ा नहीं, पर अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो हम अपने आचार्य को फॉलो करेंगे ना। ऑफ कोर्स, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कोई बंदा आके कहता, हाँ, कोई बंदा आके कहता है कि भाई रामचरितमानस में ऐसा लिखा, तो हम अपने गोस्वामी की बुक में से दिखा सकते हैं कि भाई हमारे आचार्य नहीं, मतलब ऐसा नहीं। yes. हमारे आचार्य बोल कृष्ण आ शब्द है और तुलसीदास जी बोल रहे हैं, तो हम क्यों तुलसीदास जी को फॉलो करें, हम अपने आचार्य को फॉलो करेंगे। तुम्हारे आचार्य हमारे आचार्य मतलब कुछ नहीं। हाँ, with all due respect to तुलसीदास, we will follow what Rupa Goswami says. इसकोन में भी नहीं पता लोगों को, वो पढ़ते रहते हैं मानस, रामचरितमानस दिन रात ऐसे ऐसे ऐसे। रामचरितमानस बहुत जगह पे ठीक है, लेकिन कुछ जगह वो डाइसी हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डेंजरस। रामचरितमानस मैसेज करते रहते हैं कुछ, मतलब रामचरितमानस से ही कोट करेंगे वो, पर मैं उन्हें जवाब नहीं देता, दे सकता हूँ। नहीं जरूरत नहीं है। वो एक श्लोक कोट करते हैं केवल, मतलब उन्हें पता है कि एक ही श्लोक, मतलब रामचरितमानस भी शायद इसलिए पढ़ रहे हैं, वो एक ही श्लोक कोट करेंगे, वो शिव जी और राम जी एक हैं। ये मैं करता नहीं हूँ, कुछ जवाब नहीं देता, पर ठीक है, क्या फायदा है, मतलब हम अपने आचार्य को फॉलो करेंगे। आपको जवाब देने का फायदा तब है जब आपके जवाब देने से वो रेडी है सुनने के लिए, उस टाइम पे जवाब देने का मतलब है।
वरना आपके पास बहुत टाइम है क्या? बहुत टाइम है तो बताओ, बहुत सारी सेवाएं हैं कि वो आपको भेज रहा है, फिर आप उसको फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ और भेज रहा है। एक्चुअली ये जो डिबेट मैंने किया ना, दिस वाज आल्सो टाइम वेस्ट एक तरीके से। आई डू दिस वंस इन 2-3 मंथ्स, वन डे, पूरा दिन, कोई फ्री दिन हो। इससे पता चलता है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है और कितना नीड है फाइटिंग करने का। बट इसको अगर हम रेगुलरली करेंगे, तर्क में ही लग गए कि उसने मुझे ये भेजा, फिर मैंने उसको वो भेजा, फिर मैं भक्ति कहाँ गई? स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातोचित, ये सिद्धांत कहाँ गया? Goal is to always remember Krishna. Goal is not to win arguments. We win arguments to establish Krishna consciousness. We don't win arguments to win arguments. तो हमें अपने 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 आप को जबरदस्ती स्मार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। We should go into debates only when there is a point कि है कि ये व्यक्ति सुनने को तैयार है, कि मुझे इस डिबेट से कोई फायदा है। अदरवाइज डिबेट्स में नहीं जाना चाहिए। So okay, हरे कृष्णा, हैव अ गुड डे। तो फिर वो रामचरितमानस पढ़ डिबेट जो सकते कर हैं रहे क्या हैं कि मतलब? सिर्फ बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं ना? यस, रामचरितमानस पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है, इन माय ओपिनियन। फ्यू डिवोटीज दे अलाउ, सो या, बट आई डोंट थिंक। अरे आपके पास बुक्स कम है क्या पढ़ने के लिए? आपके पास या वैष्णव भजन की कोई कमी है? तो विद ऑल ग्लोरीज टू तुलसीदास जी एंड ऑल ग्लोरीज टू भगवान रामचंद्र, वी शुड नॉट स्टडी अभी, तो बिल्कुल भी नहीं। पहले आप गौड़िया सिद्धांत तो स्थापित कर लो। हल्दर महाराज तो बहुत स्ट्रांगली बोल रहे थे, कह रहे थे जो सती स्त्री होती है वो केवल अपने पुरुष के साथ रमण करती है और अपने पुरुष की बातों में आनंद ढूंढती है, लेकिन जो असती वैश्या होती है वो दूसरे पुरुषों की बातों में आनंद ढूंढती है। इस तरीके से जो सत शिष्य होता है वो अपने संप्रदाय के सिद्धांत में रमण करता है, लेकिन जो असत शिष्य होता है वो अलग अलग संप्रदायों में जा के ढूंढ के रमण करने का प्रयास करता है। दिस इज अ वेरी हेवी स्टेटमेंट। तो हमें सत शिष्य बनना है, हमें अपने संप्रदाय के सिद्धांत में रमण करना है। गौड़ीय सिद्धांत है, इससे ऊंचा कोई सिद्धांत नहीं है। एंड आई नो हम सबके ना एक्चुअली कल्चरल वो होते हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव होता है। जैसे कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, वो लोग वारकरी संप्रदाय से हैं, वो विठल तो सुनते आए हैं शुरुआत से, जितने भी क्या कहते हैं उसको, अभंग जो तुकाराम महाराज के हैं, ज्ञानेश्वर के भी हैं। अब जो ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग है उसमें मायावाद है। हिज कमेंट्री और कमेंट्री ऑन भगवद गीता ज्ञानेश्वरी इज इम्पर्सनलिस्टिक। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। बट क्या है कि वो बचपन से सुनते आए तो उनका एक कल्चरल अटैचमेंट है, तो उसे ओवरकम कर पाना मुश्किल है। दैट मेक्स ऑल द सेंस। बट कहीं ना कहीं हमें चैस्टिटी दिखानी है, अपनी पवित्रता दिखानी है अपने संप्रदाय को, तभी तो हमें भगवान रिवील करेंगे अपने आप को। असती स्त्री की तरह अगर हम इधर उधर जाके कुछ भी सुनते रहेंगे तो हाउ विल इट हेल्प? अगर किसी ने प्रभुपाद बुक्स पढ़ ली तो मतलब वो पुराण्स पढ़ सकता है, अदर पुराण्स? सबसे पहले तो प्रभुपाद बुक पढ़े, मतलब प्रभुपाद बुक पढ़ने में ही वो 35-40 साल का हो जाएगा। और सीनियर से पूछ के पढ़ना चाहिए पुराण भी। एनीथिंग आउटसाइड प्रभुपाद बुक्स वी शुड आस्क सीनियर्स फर्स्ट। वी शुड आस्क आवर शिक्षा गुरुज, मे बी इफ पॉसिबल आवर दीक्षा गुरु, अगर पॉसिबल अगर आप पूछ सकते हैं, इतना आपका पहचान है ऊपर गुरु के साथ। बट वो भी तो हेल्प करता है प्रीचिंग में हमारी। अरे आप हमें तो सबसे पहले खुद को प्रीच करना है ना ब्रो। प्रीचिंग चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने मन को प्रीच करना है। आपने अपने मन को ईगो खिला दिया, अरे हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये शास्त्र पढ़ लिया, वो शास्त्र पढ़ लिया, और अब ईगो आ गया, देन एवरीथिंग इस तरह पीसू नीचे नहीं हो पाया आपका। फिर आप कहाँ से प्रीचिंग करोगे? कहाँ से प्रीचिंग करोगे? मैं क्या ये सब प्रिपेयर करने के लिए बाइबल पढ़ रहा हूँ? कहीं नहीं बाइबल पढ़ रहा। आपने हमारी इस्कॉन के डिवोटीज के अलग अलग लेक्चर्स, कुछ छोटी मोटी यूट्यूब वीडियोस, दैट्स इट। कोई मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा इसके लिए। जो भी मैं उठा रहा हूँ इस्कॉन से उठा रहा हूँ। कोई कह सकता है ये तो बड़ा बायस्ड व्यू है, आप अगर इसी टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको उस रिलीजन की बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मत आइए। आपको ऐसा लग रहा है बायस्ड है, आप मत आइए। मैं हमारी इतनी औकात नहीं कि मैं बाइबल पढ़ूँ, उनका टाइम है। पहले हमें अपना सिद्धांत समझना है। ऐसा सिद्धांत है मतलब ओरिजिन क्या है बाइबल का वैसे?
यही न्यू टेस्टामेंट। अच्छा नहीं मतलब जीसस ने बोला था या क्या एग्जैक्टली उसका रिवील हुआ था क्या? हाँ एक्चुअली अब बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं बाइबल के, हर सेंचुरी में एक अलग बाइबल लिखी गई है। तो उसमें जीसस के रेवलेशंस भी हैं, जीसस की लाइफ हिस्ट्री भी है, बचपन से 12 और फिर 29 से 33 साल तक की, दोनों चीज़ें मिल के। और अलग अलग जगहों पे जब रोमन एम्पायर फैला तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। लेकिन जैसे आप भगवद गीता देखते हो, शंकराचार्य की कमेंट्री का जो गीता है, रामानुजाचार्य की कमेंट्री का गीता, मध्वाचार्य की कमेंट्री का गीता, ऑल आर सेम, बट ये बाइबल के साथ नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बाइबल्स मिलती है, विच इज़ क्वाइट वियर्ड, क्योंकि इंटरपोलेशंस हुए उसमें बाद। नहीं ये खुद क्या बोलते हैं फर्स्ट जो बाइबल है उसके लिए क्या बोलते हैं, ये खुद की रिवील हुई थी या जीसस ने बोली थी क्या? दोनों चीज़ें हैं, लाइफ हिस्ट्री भी है और रेवलेशंस भी, दोनों है इसमें, दोनों चीज़ें मिलती हैं। प्रभु जी एक चीज और, पुराण जो है वो रासिक पुराण है, लेकिन उसमें से हम बहुत सारी चीजें, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें इतनी सारे इंटरपोलेशंस भी हैं, लेकिन हम उसे तब भी कोट करते हैं और वो एक तरह से मतलब हाँ मतलब कई लोग कहते हैं कि मतलब कभी कभी मतलब ऐसा तो लगता नहीं कि ये भागवतम के प्रीचर है, ऐसा लगता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रीचर है। नहीं इतना भी कोट नहीं करता। कितने श्लोक याद है आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के? याद कर लिएगा? नहीं श्लोक याद नहीं। फिर कितने कोट करते हो ब्रह्म वैवर्त पुराण से? मतलब इतने जैसे एक शिव जी की जितनी भी मतलब पद्म पुराण से आती है वो, शिव जी की बहुत सारी कन्वर्सेशंस पद्म पुराण से। रास्य पुराण क्यों है वो? मतलब वो तो कृष्ण जी पे है। That I'll have to see कि वो कौन सा पुराण है एग्जैक्टली और ऐसा पुराण क्यों क्लासिफाई किया गया और उस पुराण की इष्ट कौन है मुझे नहीं पता, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। अच्छा प्रभु जी ये जो बोले थे ना आप, मतलब ये खुद के मैं बोल रहा हूँ कि अपने लेवल पे कैसे समझे इस चीज को कि मतलब एक तरफ अभी जैसे आपने बोला था ना कि हिंदुइज्म अडेप्ट कर रहा था उस टाइम पे सब चीजों को, इसलिए उसको चेंज करना मुश्किल हो गया, तो अपने लेवल पे कैसे समझे उसको कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज हाईएस्ट? You see, you match your principles with that of Madhvacharya and Ramanujacharya. You see कि वो शरणागति की बात करें कि आज शरणागति की बात हो रही है, वो कृष्ण का शरणम की बात कर रहे हैं, आज क्या कृष्ण के शरणम की बात हो रही है, वो क्या षड्विधा शरणागति की बात कर रहे हैं, अनुकूल क्या आज बात हो रही है, वो अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से की बात कर रहे हैं, वर्जनम की बात कर रहे हैं, क्या आज बात हो रही है, क्या फिलोसफिकली कोहेरेंट है? यस है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, चैतन्य भागवत पढ़िए, चैतन्य मंगल पढ़िए, इसमें से बताइए कोई ऐसा कंसेप्ट है जो इस्कॉन फॉलो नहीं कर रहा है, कोई ऐसी फिलोसफी जो इन बुक्स में दी गई है चैतन्य महाप्रभु की लाइफ स्टोरी से जो इस्कॉन फॉलो नहीं कर रहा है? Everything ISKCON is following. One thing you can name that we are not following. तो मतलब हमें हिंदुइज्म से अलग समझना है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस को, पहली चीज। It is different. जिस तरीके से हिंदुइज्म को आज हम डिफाइन करते हैं, नहीं आज नहीं, अगर हम वैसे समझे कि हमेशा से जो हिंदुइज्म है वैदिक वर्णाश्रम धर्म के कॉर्पस के अंदर है कृष्ण, वैष्णविज्म और वैष्णविज्म के अंदर है। हम ऐसा क्लेम नहीं करते कि सनातन धर्म अलग है और गौड़ीय वैष्णविज्म अलग है। सनातन धर्म के कॉर्पस के अंदर, सनातन धर्म अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर गौड़ीय वैष्णव, लेकिन जो मॉडर्न डे हिंदुइज्म है, सनातन धर्म was free from bodily identification, but Hinduism is heavily dependent on bodily identifications. ये जगन्नाथ मंदिर में कह रहे हैं हिंदूज ओनली अलाउड, रंगनाथ मंदिर में ओनली हिंदूज अलाउड। आप देखो ना कि उसने अमेरिका लेटर भेजा कि मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है, उसको इंडिया से फ़ोन आ गया चर्च से, और आप जगन्नाथ मंदिर में देखो पंडा ऐसे आपको धक्का देंगे, चल आगे, चल आगे, चल आगे, चल 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 आगे चल, और पैसा दे इसका, पैसा दे उसका पैसा। इसलिए धर्म को आज चाहिए कि लोग, हमें इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने हैं जहाँ पे हम जो लोग हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दें। ऐसे हम उनको, लोगों को ना भीड़ ना समझे, भीड़ नहीं है, वो भक्त हैं। आज मंदिर में बहुत भीड़ है, भीड़ नहीं है मंदिर में, भक्त हैं बहुत आज। लेकिन जब तक ये कॉन्शियसनेस रहेगा ना, भीड़ है, वो भीड़ है भाई। आप बाहर जाके देखो, DT 6 हैं ऑल्टर पे और भक्त 4 है खड़े आरती में, तो आपको पता चलेगा उस भीड़ की कीमत। इसलिए वी नीड टू हैव दैट इंटेलिजेंस एंड वी नीड टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशंस, वी नीड टू डेवलप
systems जिसमें we help others to practice सनातन धर्म। भव्य प्रो आप कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जी वो मैंने क्वेश्चन भेजा था आपको सुबह मॉर्निंग में। क्वेश्चन भेजा था आपने भव्या जोशी, भव्य प्रो ये रहे भव्य प्रो। No, just like Srila Prabhupada ji told, you should never ask boons from Krishna, and sometimes मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पे so that everyone can read. This will be the last question. Of that we will wrap up. I'm pasting it in chat so that everyone can read. So, Hare Krishna bro, I want to know, just like Srila Prabhupada ji told that you should never ask any boon from Krishna, and sometimes certain situations were created by Krishna for a benefit, that your interaction with Krishna will become more strong. Just like if I ask any boon from Krishna, then my bond with Krishna will become more strong. So, should I ask any boon from Krishna? What will be more relevant to become a pure devotee? ओके, मैं आपको बताता हूँ भगवान से क्या बून मांगना है। This is the boon that we have to ask from God. मानस देह गेह जो किछुमोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। This is मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। जन्माओ भी मुए इच्छा जदि तोर, भगत गृह जनि जन्म हो मोर। मीटिंग करते हैं। Slay me or protect me as you wish, for you are the master of your eternal servant. If it is your will, then I be born again. That I be born again, then may it be in the home of your devotee. May I be born again even as a worm, so long as I may remain your devotee. I have no desire to be Brahma, averse to you. I yearn for the company of that devotee who is completely devoid of all desires for worldly enjoyment or liberation. Father, mother, lover, son, lord, protector and preceptor and husband, you are everything to me. Thakur Bhaktinu says, "O Khan, please hear me, O Lord of Radha. You are my life and soul." This is what we have to pray to Lord. Is this making sense? जी, exactly. This is what we have to pray, and then it will help us develop relationship with God. अंतवंतु फलम तेषाम, भगवान गीता में कहते हैं जो देवताओं से हमें मिलता है, that is अंतवन, that is fallible, वो खत्म हो जाता है. But what we get from Krishna, that is infallible, because Krishna is infallible. Krishna is Achyut, what he gives is also Achyut. It's better ask bhakti always. ठीक है, I think if we don't have anything else to discuss, we can wrap it up here. प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछो। या प्लीज। ये मायावादी के साथ जब भी डिबेट होता है तो हम लोग देखते हैं कि मतलब मायावादी अगर पुराण को एक्सेप्ट करते हैं तो वो उसका लिटरल मीनिंग को नहीं लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बाहर प्रीचिंग करेंगे ना तो वो उनका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और ये चीज क्योंकि दुनिया में ना लोग हम लोग का जो बात अगर बोलेंगे कि नहीं शास्त्र एज इट इज अगर मानना है, तो ये थोड़ा ये बहुत दिक्कत लगता है। तो देन यू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको भगवान ने बुद्धि नहीं दी है? बुद्धि फिर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इसको अगर जैसे मायावादी में प्रेजेंट करता है ना तो लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। क्यों ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे? उसके चार मुंह हैं।
नहीं वो एक ही है, बट वो फिर उनका लिटरल मीनिंग नहीं लेता है ना। अब जो चीज लगेगा हम लोग को मतलब सांस में पड़ गई कि ये पॉसिबल नहीं है, और वो जैसे अब जैसे कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे वो लोग ये तो भगवान के मायावादी भी जो कह रासलीला रहे हैं को वो भी एक्सप्लेन, जो मायावादी कह रहे हैं वो भी लॉजिकल नहीं है। भगवान के रासलीला को भी बोलते कि नहीं ये लिटरली ऐसा नहीं था, कुछ कुछ उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे रावण का भी देते हैं कि रावण का 10 सिर नहीं हो सकता है, एक ही सिर था, वो 10 सिर कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा था, और क्यों भगवान ने आज हमारे पास 2 सिर वाले लोग जन्म लेते हैं। आप दिखा दो उनको फोटो निकाल के, बॉडी एक है सर 2 है, मैं दिखा सकता हूँ अभी आपको फोटो। आप बोलो जब ये हो सकता है तो 10 सिर क्यों नहीं हो सकता? आगे नहीं से दैट्स तो उसमें इम्पॉसिबल। अच्छा अगर ऐसा केस होता है तो उसमें 2 सोल रहेंगे या 1 सोल रहेंगे? 2 सोल रहेंगे, क्योंकि दोनों सोच अलग अलग तरीके से रहे, दोनों की चेतना अलग है, 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। तो रावण 10 इंडिविजुअल था या 1 था? नहीं was one person in Ravan. It's a different case. वो एक ही व्यक्ति के 10 सर थे, इसमें 2 व्यक्ति एक शरीर में है, सो इट्स अ डिफरेंट केस। बट अगर आप बाहरी पर्सपेक्टिव से देखें, आत्मा को हटा के, तो अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? बट ये देखते हैं कि जैसे अगर ऐसा कुछ होता है तो बट वो मतलब थोड़ा वीक टाइप का रहता है, मतलब नॉर्मल उसको नहीं कहते हैं, नॉर्मल टाइप का कहते हैं। बट जो रावण था वो मतलब वो तो मतलब हाँ, तो ये लोग भी स्ट्रांग होते हैं, इनकी भी अलग पावर है। आप इनको होमवर्क करने को दे तो आधे टाइम में कर देंगे। आप इनको रूबिक्स क्यूब दो, आधे टाइम में सॉल्व कर देंगे। आप इनको पजल दो, आधे टाइम में सॉल्व कर देंगे। आप इनको सुडोकू दो, आधे टाइम में कर देंगे। मायावाद भी तो प्रभु जी अब्राहमिक रिलीजन जैसा ही है, उनके भी तो वो भी तो कहते हैं मायावाद तो है ही नाक नहीं आँख मायावाद तो है ही अब्राहमिक। नहीं। लेकिन बस लोगों को फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम क्या है, वो बस उनके जो मतलब कल्चर में चल रहा है ना, वो ही उन्हें फॉलो करना है, उनके आसपास के लोग जो कर रहे हैं बस इसकॉन थोड़ा पॉपुलर है इसलिए बातों में आ जाता है। इसलिए ब्रो हम लोगों को छुई मुई नहीं बनना कि है संडे आके जाओ कहीं और चले जाओ, ऐसा करना है तो बहुत संस्थाएं हैं, बहुत मंदिर है। इधर आना है तो फिर फाइटर बनना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे भीड़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइटर बनना है तो फाइटर बनो। भक्ति विनोद ठाकुर ने जब भक्तिसिद्धांत महाराज को कहा था कि जाओ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेकर आओ, तो उन्होंने बोला कि दीक्षा दे तो ठीक है, नहीं दे तो गंगा जी में कूद जाना, कोई सार्थक नहीं है तुम्हारा जीवन। ये किसको कह रहे हैं? भक्ति जान सकते नैन मणि मंजरी उनको कह रहे हैं कि अगर दीक्षा नहीं मिला तुम्हारा जीवन बेकार है, कूद जाना गंगा जी में, मर जाना वहीं पे, वापस मत आना घर घूम के लौट के। तो आबादी भी घट रही है हिंदूज की भाई, उस तरीके से मुस्लिम्स की तरह ग्रुप। मुस्लिम्स का कितना फेथ है, देखो भाई, अल्लाह ने बच्चे दिए, अल्लाह पालेगा। हिंदू तक कौन पालेगा, क्या पालेगा? अरे इसका फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। अरे तुम्हें किसने बोला फैमिली प्लानिंग? बच्चे पैदा करो, गुरुकुल भेजो, 5 साल तक उसको शास्त्र शिक्षा दो, फिर गुरुकुल भेज दो। गुरुकुल में कौन तुम्हें पैसे ले रहा है? इतने कौन गुरुकुल एक भी पैसा नहीं मांगेंगे। उसको बोलो जा भाई तू धर्म का प्रचार कर, पूरी ज़िंदगी एक पैसा खर्चा नहीं करना उसके ऊपर। भाई जो भी गृहस्थ बनेगा उसके कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए, नहीं तो फालतू में क्यों गृहस्थ आश्रम में जाओगे? तुमसे नहीं बच्चे पैदा नहीं हुए, बच्चे तुमसे संभालने नहीं जा रहे, तुम संडे आके भक्ति करे, तुमसे भक्ति नहीं हो रही ना। तुम भाई तुमने प्रचार करके लाखों करोड़ों भक्त बना दी, वो भी नहीं हुआ, ना बच्चे हुए, ना परिवार पला, ना प्रचार हुआ, ना भक्ति हुई अपनी। किया क्या जिंदगी में फिर? और गृहस्थ है उनके बच्चे होने चाहिए अच्छे, 3 4 5 बच्चे करो, क्या दिक्कत है? भेज दो सबको अलग अलग। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल प्रभु। अरे पागल है गवर्नमेंट, इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया में देखना दंगे कर देंगे लोग। चाइना में कम्युनिज्म था इसलिए आ गया, इंडिया में दंगे कर देंगे, मुसलमान ही दंगे करेंगे। उनको चाहिए 5-6 फौज पूरी। हिंदू लोग बच्चे नहीं करते, क्यों नहीं करते? लेकिन ये पॉपुलेशन कंट्रोल में लाना गलत है ना, मतलब शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए। शास्त्र की दृष्टि से विरुद्ध है। शास्त्र कहते हैं पुत्रार्थे पत्नी धार्या, पत्नी का धारण करने का अर्थ है कि आप संतान उत्पत्ति करो। संतान उत्पत्ति नहीं करोगे तो आपके पत्नी रखने का कोई मतलब नहीं है। और ये इस्लामिक कंट्री जितनी 57 देश कहते हैं, ये कोई भी इसमें से पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं लाने वाला। इनका तो गोल ही है और पैदा करो, फौज बनाओ और आबादी से भर दो दुनिया को। हाँ, मतलब वहाँ के एंटायरली नंबर गेम। इसलिए गृहस्थों को बच्चे पैदा करने चाहिए। आप में से जो भी गृहस्थ बनेगा भाई 4-5 बच्चे पैदा करो, उसको अलग अलग गुरुकुलों में भेजो, पूरा ट्रेन करके वॉरियर बनाओ, बोलो भाई धर्म की सेवा कर, और क्या। ये क्या फैमिली प्लानिंग, इसको ये सब होता है जब बच्चों उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना होता है। उसके पैसे दो, ये फीस दो, ये सैलरी ये इधर जाएगी, ये ट्यूशन फीस दो, इसकी कॉपी किताब ड्रेस, कुछ ज़रूरत ही नहीं। 4-5 साल तक उसको वॉरियर बनाओ, उसको आचरण में शिक्षा दो, गुरुकुल जा भाई, वहाँ पढ़, क्या दिक्कत है?
और नहीं, अगर 5 बच्चे नहीं रह सकते तो ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं तो फिर इतना एक वॉरियर स्पिरिट होना चाहिए। नहीं तो भाई या तो फिर आप पूरी तरीके से गृहस्थ आश्रम में आके प्रचार करो कि मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ प्रचार करना है, और आप 1000 2000 5000 10000 20000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, फिर वो एक अलग बात है। यही 3 कैटेगरीज है। नल्ला तल्ला भक्त बनने का मतलब नहीं है। इस तरीके से एक वॉरियर स्पिरिट होना चाहिए, और ये मिशनरी स्पिरिट ही आपको हमने ये जो 12 अपोस्टल्स इसके बारे में क्या पढ़ा, ये लोग भाई इनको जब पता चला ना प्रभु कि जीसस हमारी वजह से मरा, अब हमें जीसस की वजह से मरने हैं, they were ready to do anything and everything because they had that missionary spirit. So we also need some crazy people who are ready to fight. बट हिंदू में तो ऐसा स्पिरिट है नहीं ना, क्योंकि मतलब माँ बाप भी मना करते हैं जगाने से सब हो जाएगा, जगाने से सब हो जाएगा। लेकिन इस्लाम में देखते हैं वो लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं मतलब अपना धर्म बढ़ाने के लिए। जगाने से सब हो जाएगा, लीडर चाहिए होता है। ऑल वी नीड इज अ लीडर, कुछ और नहीं चाहिए, लीडर ही चाहिए बस। जो लीडर पागल होता है ना, तो वो पागल लोगों को जन्म देता है, और वो पागल लोग कुछ भी कर जाते हैं। एनीवेज ये सब तो कहानियाँ हैं, कितना भी डिस्कस करते रहो, बट वी नीड टू हैव दैट वॉरियर स्पिरिट इन अस कि लाइक वी हैव टू फाइट, और मुझे अपने आप को उस फाइट के लिए तैयार करना है। कहीं ना कहीं सटली हमारे मन में ये होना चाहिए हमेशा, देन वी विल बी एबल टू अचीव, अदरवाइज वी विल नेवर बी एबल टू अचीव। सो ऑलवेज प्लीज हैव दैट वॉरियर स्पिरिट कि मेरे को लड़ना है, मेरे को लड़ना है, मेरे को लड़ना है, मेरे को लड़ना है। नहीं रहेगा वो स्पिरिट तो आप फिर ऐसे ही आराम गया आराम संडे वाले भक्त बनोगे, जो संडे संडे जिनकी भक्ति याद आती है जिनको, वो वाले भक्त। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। आज हमने मंगलाचरण ही नहीं किया इतने जोश जोश में। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद। क्यों बोल रहे बीच में? ठीक है, थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद।